Greetings to all. Today we delve into one of the most harrowing and brutal moments in Shakespeare's King Lear, Act 3. So, uh, this act marks a pivotal descent into barbarity and chaos where moral order collapses and cruelty reigns unchecked. The blinding of Gloucester stands not merely as an act of physical violence but as a profound symbol of the characters and indeed humanities, which are blindness to truth, loyalty, and justice. So, Shakespeare masterfully heightens the tragedy by exposing the terrifying ease with which power, when corrupted, strips away all semblance of compassion and honor. Cornwall and Regan, who once appeared merely ruthless, now emerge as truly monstrous figures embodying the darkest aspects of ambition and cruelty. So, in this lecture, we will unpack the deeper themes and motives that permeate this brutal scene, analyze the psychological and political dimensions of the action, and explore key quotations that capture the horror and symbolic depth of sufferings. So, Act 3 of William Shakespeare's King Lear is arguably the emotional and thematic heart of the play. The act takes us into the depths of Lear's madness, the cruelty of his daughters, and the raw violence of nature mirroring human disintegration. The storm is not just a background, it becomes a central character that amplifies chaos and inner turmoil. This lecture offers a scene by scene analysis highlighting key themes, motives, and important quotes with detailed commentary. So, we will discuss in Act 3 about the storm symbolizes Lear's inner turmoil. Lear is caught in a violent storm on the heath. The external chaos mirrors his internal collapse and descent into madness. Lear's growing madness is also there. Lear's mental state describes as he begins to understand the betrayal of his daughters and his own foolishness. He talks to the storm as if it were a person, showing emotional background. So, we have discussed about the storm. The storm symbolizes Lear's inner turmoil. So, Lear is caught in a violent storm on heath, and the external chaos mirror his internal collapses and descent into madness. जो सेकंड है ये इसमें the Lear's mental state described. He talks to the storm as if it were a person, showing emotional breakdown. The third one is compassion from the fool and the king. Fool remains by Lear's side, offering cryptic truths and loyalty. Kent still disguises his case and helps Lear find shelter and shows deep loyalty. Fourth one is introduction of poor Tom, who is Edgar in disguise. Edgar disguises himself as a mad beggar named Poor Tom to escape persecution. Lear connects with Tom, seeing him as a reflection of humanity's vulnerability. Lear begins stripping off his clothes, a symbolic shedding of ego and power. Gloucester's loyalty and betrayal. Gloucester secretly helps Lear, risking his life. He is later betrayed by Edmund, who reveals Gloucester's plan to Cornwall and Regan. Cornwall and Regan's cruelty peaks. So Gloucester is captured and brutally punished. His eyes are gouged out. This act represents the peak of physical and moral cruelty in the play.
The seventh one is theme intensify. So themes like madness, betrayal, loyalty, justice, blindness which is literal and metaphorical both, and the natural order dominate the act. So motives of sight versus blindness is there. Motives of strong madness, identity are richly layered here. The last one is the moral reversal begins. So as Lear suffers, he gains wisdom and insight. The power dynamics begin shifting. The powerful, who are the powerfuls are Regan, Gondrel, and Edmund. They act immorally while the fallen, uh, who is Lear and Gloucester, gain moral clarity. And there are 7 scenes in the act. So we will discuss the scene 1. सीन 1 का जो सेटिंग है वो एक स्ट्रॉमी हीट है. यहाँ कैरेक्टर केंट और जेंटलमैन है. केंट केस बना हुआ है और एक जेंटलमैन है. If we talk about the plot, so a storm rages on the heath. Kent, seeking Lear in vain, runs into one of Lear's knights and learns that Lear is somewhere in the area, accompanied only by his fool. Kent gives the knight secret information. He has heard that there is an unrest between Albany is the husband of Goneril, and Cornwall, husband of Regan, and that there are spies for the French in the English courts. Kent tells the knight to go to Dover, the city of England nearest to France, where he may find friends who will help Lear's cause. So he gives the knight a ring and orders him to give it to Cordelia, who will know who has sent the knight when she sees the ring, and Kent leaves टू सर्च फॉर लेयर. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कॉर्डेलिया का भी अब अपीयरेंस होगा इसमें, इस एक्ट 1 में. केंट जो है मतलब उसको इनडायरेक्ट वे में लियर को हेल्प करेगा. सो इफ़ वी टॉक अबाउट थीम्स, तो दिस सीन सबसे पहला जो यहाँ पर है क्योज इन नेचर. तो जो टेम्पेस्ट आया है it's like a chaos in nature as well as in the behavior of Lear. जो स्ट्रॉम है वो सिर्फ बाहर नहीं है, वो लियर के मन में भी चल रहा है. ही वॉज बिट्रेड बाय हिज ओन डॉटर्स. सो बेसिकली उसको उसके मन में भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन है. सो एक्ट 3 का जो सीन 1 है, इट्स वेरी briefly it carries immense weight and sets the tone of emotional and moral storm of the act. So सबसे पहला जो इसका थीम है वो सेकेंड थीम है. पहला तो क्योज इन नेचर था. सेकेंड इज़ लाइक केंट्स कैरेक्टर रिमेन्स अ बीकॉन ऑफ लॉयल्टी. डिस्पाइट बीइंग बैनिश्ड, ही कंटिन्यूज to serve Lear in disguise. The contrast is stark when seen against the backdrop of Edmund's betrayal of his father Gloucester and daughter's betrayal of Lear. If we talk about chaos in nature, so chaos in nature is equal to chaos in the kingdom. The storm, it's not just a weather, but it symbolizes Lear's shattered mental state. The disintegration of political order, the moral collapse in the society is described here. Next है hope amidst despair. So despite the despair, Kent speaks of the secret intelligence between France and English nobles. तो यहाँ पर मैंने जैसे पहले आपको प्लॉट में बताया कि केंट जो है वो ही रिमेन्स अ लॉयल टू हिज किंग लेयर. तो यहाँ पर ये एक होप है. मतलब केंट जो है वो सीक्रेट एजेंट से ही बात करता है, जो फ्रांस में जाकर कॉर्डेलिया और किंग ऑफ फ्रांस को कांटेक्ट कर सके. उसे एक रिंग भी देता है कि भाई वो रिंग देखकर वो समझ जाएगी कि उसको हेल्प करना है अपने फादर को.
तो बेसिकली दीज आर द थीम्स एंड मोटिव्स भी यहाँ पर स्ट्रॉम है, लॉयल्टी इन एग्जाइल है. स्ट्रॉम डिस्क्राइब करता है द इनर स्ट्रॉम ऑफ लियर, द स्ट्रॉम इन द किंगडम एंड द स्ट्रॉम इन द नेचर. लॉयल्टी इन एग्जाइल रिप्रेजेंट करता है अबाउट केंट हु रिमेन्स ऑलवेज लॉयल even after banishing, even after being banished by the king himself. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये मतलब ये यहाँ पर मोटिव्स है जो यहाँ पर देखने को मिलते हैं. इफ़ यू टॉक अबाउट की कोट्स, तो सबसे पहला है ये आपको एक्ट 3 सीन 1 में 19 से लेकर 21 लाइन पर मिल जाएगा. ये देयर इज़ डिवीजन ऑल्दो एज येट द फेस ऑफ इट बी कवर्ड विथ म्यूचुअल कनिंग. ये केंट कहता है. हेयर केंट रेफर्स टू द पोलिटिकल टेंशन बिटवीन कॉर्नवॉल एंड एल्बनी. सो दिस लाइन, these 3 lines reveal early cracks within the ranks of Lear's daughter's husband. So there is a political tension between Cornwall and Albany. So theme of political intrigue is representing here, जो कि क्या है, डिसेप्शन है, हिडन कॉन्फ्लिक्ट्स है, शिफ्टिंग अलायंसेस है. ठीक है. तो यहाँ पर हमें इस लाइन के थ्रू हमें किंग कॉर्नवॉल और एल्बनी के बीच में एक कुछ टेंशन है, जो गैप्स हैं उनके बीच में, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ राइवलरी, वो हमें देखने को मिलती है. सेकंड जो केंट ही कहता है, वेयर इज़ द किंग. सो दिस इज़ द ओपनिंग लाइन. ये बिल्कुल एक्ट 1 सीन 1 की पहली लाइन है, वेयर इज़ द किंग. आप जब एक्ट पढ़ेंगे, जब आप सीन पढ़ेंगे, मतलब जब टेक्स्ट आप पढ़ेंगे, तो आपको एकदम शुरू में ये लाइन मिल जाएगी. केंट का डायलॉग है. सो दिस ओपनिंग लाइन इमीडिएटली एस्टेब्लिशेस द कंसर्न फॉर लियर्स वेलबींग. सबसे पहले आकर लियर से पूछता है, एमिड द रेजिंग स्टॉर्म, केंट्स फर्स्ट थॉट इज अबाउट द किंग, which is a sign of his unwavering loyalty. So third one is contending with the fretful elements, bids the winds blow the earth into the sea or swell the curled waters above the mean. ये एक जेंटलमैन आता है इसमें एक्ट 3 सीन 1 में. ये आपको 4 to 6 लाइन में मिल जाएगा. सो द जेंटलमैन डिस्क्राइब्स लियर्स कंडीशन टू द किंग. वो पूछता है ना, वेयर इज़ द किंग, तो वो जेंटलमैन ही बताता है उसको कि अबाउट किंग लियर्स कंडीशन. सो लियर इज़ आउट इन द स्टॉर्म, एंग्रीली चैलेंजिंग नेचर. एक्चुअली ही वॉज टॉकिंग टू द स्टॉर्म एज like storm is a person. So it represents that Lear is out in the storm and he's challenging angrily to the nature, which is a symbol of his internal chaos and his loss of power. ये जो लाइन है ना, contending with the fretful elements, it suggests that Lear is no longer in control emotionally and politically. Lear का भी कोई कंट्रोल नहीं है. Lear is not in any kind of control emotionally और politically. काफ़ी shattered है वो. So this quote reinforces the storm as a metaphor for Lear's mental and moral crisis. So if we talk about scene 1, so this is short but intense scene which builds the emotional and thematic groundwork for the rest of the act. Through powerful metaphors, political whispers and a background of natural fury, Shakespeare lays bare a kingdom and a king in ruins. Now the next is scene 2. So the setting is King Lear is still on the heath. Characters यहाँ पर है Lear, Fool और Kent. If we talk about the plot, so Lear rants against the storm and ingratitude of his daughters. The Fool tries to cheer him up with wit. Kent finds them and guides them towards shelter
Meanwhile, Lear wanders around in the storm, cursing the weather and challenging it to do its worst against him. बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है वो, सारा गुस्सा, बेटियों का गुस्सा भी अपना ये स्टॉर्म पे निकाल रहा है. He seems slightly irrational, his thoughts wandering from idea to idea, but always returning to fixate on his true cruel daughters. वही ना, जो गुस्सा तो है ही, दो बेटियों का ही है, तो सारा घूम फिर कर उसकी बेटियों के पास आ रहा है. Fool who always accompanies him urges him to humble himself before his daughters and seek shelter indoors, but Lear ignores him. Kent finds two of them and urges them to take shelter inside a nearby hovel. Lear finally agrees and follows Kent towards the hovel. The fool makes a strange and confusing prophecy. तो यहाँ पर भी जो थीम है फर्स्ट है नेचर एंड क्योर्स. सो द स्टॉर्म symbolizes the chaos in the natural and political world. It's both literal and metaphorical, echoing Lear's internal turmoil and kingdom's disorder. Okay. Second one is madness and identity. Lear begins to lose his grip on reality. His speeches show his mental fragmentation. He questions his identity and role, which is no longer supported by power. Third is justice and injustice. Lear rages not only at the storm, but at the moral injustice of his daughter's betrayal and the condition of humanity. Fourth is powerlessness. So this scene shows a fallen king. He once he was mighty once. Now he is defenseless before nature. It underlines the transient nature of authority and status. Let's talk about motives. The first one is storm as a mirror of mind. ये मैंने पहले भी कई बार बताया है कि जो सिर्फ बाहर ही स्टॉर्म नहीं है, एक स्टॉर्म लियर के माइंड में भी है, उसके हार्ट में भी है, जो कि क्यों आया है, उसकी बेटियों की वजह से, उनकी बिट्रायल की वजह से. दूसरा यहाँ पर फूल का विजडम देखने को मिलता है. एज ही कंटिन्यूअली सपोर्टेड किंग लियर, फूल मेक्स अ स्ट्रेंज एंड मतलब ही ऑलवेज make a scene, make a situation for Lear which is very good for him. The fool who always accompanies him and urges him to humble himself before his daughters, and मतलब he always say something light ताकि वो जो किंग है, किंग लियर है, उसको अच्छा फील हो. सो इफ़ वी टॉक अबाउट की कोट्स, तो सीन 2 में बिल्कुल पहली लाइन है लियर की, ब्लो विंड्स क्रैक योर चीक्स रेज ब्लो. सो हेयर लियर challenges the storm, daring nature to unleash its fury. This shows his desperation and loss of control. He externalizes his inner chaos, seeing the storm as a reflection of his mental state. The violent language. Here, the language of Lear is violent. जैसे इसने बोला है ना, crack your cheeks. This is so violent. It shows his deep anger, not just at the storm, but at betrayal and injustice. जो ये गुस्सा है ना इसका, ये सिर्फ स्टॉर्म पे नहीं है. एक्चुअल वो स्टॉर्म पे है ही नहीं, वो तो बिट्रायल पर है जो उसकी बेटियों ने उसके साथ किया. वो इनजस्टिस पर है जो उसने खुद अपनी तीसरी बेटी कॉर्डेलिया पर किया. नेक्स्ट इज हेयर आई स्टैंड योर स्लेव. ये फर्स्ट लाइन है, ठीक है. हेयर आई स्टैंड योर स्लेव, अ पुअर इन्फर्म वीक एंड डिस्पाइज ओल्ड मैन. ये 19 to 20 पर मिल जाएगा आपको. सो दिस मार्क्स अ टर्निंग पॉइंट वेयर लियर बिगिंस टू कन्फ्रंट हिज वल्नरेबिलिटी.
He accepts that he is no longer a king, but a helpless man, abandoned by those he trusted. इसने बोला ना, here I stand your slave, a poor, infirm, weak and despised old man. तो ये इसने एक्सेप्ट कर लिया अपने अपने फेट को कि अब ये कोई किंग नहीं रहा है, बल्कि एक हेल्पलेस ओल्ड मैन बन गया है, जिसको उन्हीं लोगों ने अबेंडन किया जिस पर उसने कभी ट्रस्ट किया था. देयर इज़ ऑल्सो अ टोन ऑफ सेल्फ पिटी, खुद पे काफ़ी पुअर, इन्फर्म, वीक बोल के सेल्फ पिटी कर रहा है. एंड दिस इज़ ऑल्सो अ रियलाइजेशन, एंड इट्स काइंड ऑफ एन अर्ली स्टेप टूवर्ड ह्यूमिलिटी. ठीक है, तो लियर, ये भी डायलॉग लियर का ही है. थर्ड भी लियर का है, फोर्थ भी लियर का है. तो यहाँ पर ये है, ये आपको 59 to 60 पर मिल जाएगा ये वाली लाइन. आई एम अ मैन मोर सिंड अगेंस्ट देन सिनिंग. तो दिस इज़ वेरी फेमस लाइन. दिस इज वन ऑफ द फेमस लाइन्स इन द प्ले. It represents Lear's defense of himself. He admits his fault. कह रहा है नहीं, आई एम अ मैन मोर सिंड अगेंस्ट दैट सिनिंग. तो यहाँ पर ये कन्फ्रंट कर रहा है कि हाँ भाई, मुझसे तो गलतियाँ हुई है, लेकिन जितना इनजस्टिस उसने किया है उससे ज़्यादा, कहीं कहीं ज़्यादा इनजस्टिस उसके साथ हुआ है. ही एडमिट्स दैट हिज फॉल्ट, मतलब ही एडमिट्स हिज फॉल्ट, बट feels greater injustice has been done to him. It shows his moral confusion. मतलब यहाँ पर थोड़ा सा हम इसका moral confusion देखने को मिलता है, because as he still doesn't fully see his mistake towards Cordelia. यहाँ पर उसको ये तो लग रहा है कि भाई मैंने कोई पाप किए हैं, लेकिन मेरे साथ ज़्यादा गलत हुआ है, लेकिन अभी भी ना वो फुली नहीं देख पा रहा है अपनी गलतियों को जो उसने कॉर्डेलिया से किया. बट ही फील्स द वेट ऑफ अदर्स क्रुएलिटी. इसको ये ज़्यादा लग रहा है कि मैं ज़्यादा विक्टिम हूँ. इसको अभी भी कॉर्डेलिया विक्टिम नहीं लग रही है, क्योंकि इसको लगता है कि भाई उसने मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं किया, वो मुझे प्यार नहीं करती, तो मैंने जो किया ठीक किया. लेकिन जिस पर इसने ट्रस्ट किया, जो बेटिया इससे ज़्यादा प्यार करती थी, जिसको इसने सारा किंगडम दे दिया, उन्होंने इसके साथ बिट्रे किया, तो ये अपने आप को ज़्यादा विक्टिम फील कर रहा है. नेक्स्ट है माई विट्स बिगिन टू टर्न. ये 68 नंबर की लाइन है. दिस कोट सिग्नल्स लियर्स अवेयरनेस ऑफ हिज मेंटल डिक्लाइन. लिखा है ना, माई विट्स, मतलब माई मेंटल स्टेट बिगिन्स टू टर्न, मतलब वो डिक्लाइन हो रहा है. सो इट क्लैरिफाइज Lear's awareness of his mental decline. It's a rare moment of clarity in the middle of chaos. The storm and betrayal are pushing him toward madness, and here he begins to realize it. तो यहाँ पर ये जो किंग है, किंग लियर, ये काफ़ी क्योज में है, लेकिन अब इसको थोड़ी क्लैरिटी हो रही कि अब ये जो उसका मेंटल स्टेट है ये और ज़्यादा डिक्लाइन हो रहा है. इसकी जो मेंटल हेल्थ है वो डिस्टर्ब हो चुकी है, इसको रियलाइजेशन हो गया है. अब नेक्स्ट सीन थर्ड है ग्लॉसेस्टर्स कैसल में. यहाँ पर दो ही कैरेक्टर है, ग्लॉसेस्टर एंड एडमंड. इफ़ यू टॉक अबाउट प्लॉट, सो ग्लॉसेस्टर टेल्स एडमंड दैट ही इज़ हेल्पिंग लियर. देखो, जो इसको धोखा देने वाला है उसी को ही बता दिया इसने प्लान, तो ये तो कॉर्नवॉल और रीगन को बताएगा ही बताएगा. तो इसने इसको, कि ये इसको ट्रस्ट करता है ना, अपना सगा मतलब बेटा तो उसका है ही, लेकिन ये इसको ज़्यादा ट्रस्ट कर रहा है, एडगर से भी ज़्यादा. सो ग्लॉसेस्टर टेल्स एडमंड दैट ही इज़ हेल्पिंग लियर एंड दैट देयर इज़ अ लेटर. ये देखो लेटर, ये है एडमंड, ये है ग्लॉसेस्टर, ये इसको ये लेटर दिखा रहा है. ये इसको बताता है कि देयर इज़ अ लेटर अबाउट फ्रेंच इन्वेजन, कि भाई मैंने मतलब केंट अभी आगे बात करेगा ना, मतलब मैं हेल्प करूँगा, और ये लेटर जो है ये फ्रेंच इन्वेजन के बारे में है, तो हो सकता है कि कुछ हेल्प मिल जाए लियर को. बट अकॉर्डिंग
to his nature, which is manipulative, Edmund betrays this information to Cornwall. ये इसको बताता है, ये कॉर्नवॉल को बताता है, ठीक है। एमिंग टू राइज इन पावर, क्योंकि इसको पता है कि अब जो पावर है वो किसके हाथ में है, वो कॉर्नवॉल के हाथ में। तो चलो मैं उसको जाके बता देता हूँ, तो मुझे कुछ मिल जाएगा बदले में, कुछ पावर मिल जाएगी मुझे। तो ये इसको बताता है, ये उसको बता देता है कॉर्नवॉल को। सो इनसाइड हिज कैसल अ वरिड ग्लॉसेस्टर स्पीक्स विद एडमंड। जो ये ग्लॉसेस्टर है, भले ये भी ब्लाइंड है, मेटाफोरिकली तो ये भी ब्लाइंड है, लेकिन ये कहीं ना कहीं लियर से लॉयल है ये। सो द लॉयल ग्लॉसेस्टर रिकाउंट्स हाउ ही बिकेम अनकम्फर्टेबल व्हेन रीगन, गोनेरिल एंड कॉर्नवॉल शट लियर आउट इन द स्ट्रॉम। इसको बड़ा बुरा लगा था जब उन्होंने इसको बाहर निकाल दिया ना स्ट्रॉम में। बट व्हेन ही अर्ज्ड देम टू गिव हिम परमिशन टू गो आउट एंड हेल्प लियर, दे बिकम एंग्री। सही बात है, इसने बोला भी था कि चलो मैं हेल्प कर देता हूँ, मतलब इसने अर्ज किया कि भाई मैं हेल्प कर देता हूँ, मैं जब बाहर जाऊँ और हेल्प करूँ लियर को। तो वो तीनों गुस्सा हो गए और उसके कैसल का पोजीशन भी उससे ले लिया और उसको ऑर्डर दिया दैट दे ऑर्डर हिम नेवर टू स्पीक टू लियर और प्लीड ऑन हिज बिहाफ, कि कभी बात मत करना और उसकी कभी हेल्प के लिए भी प्रे मत करना हमसे। सो ग्लॉसेस्टर टेल्स एडमंड दैट he had received news of a conflict between Albany and Cornwall. ये भी बता दिया इसने इसको। He also informs him that a French army is invading and that part of it has already landed in England. So he disclosed everything in front of Edmund. Gloucester feels that he must take Lear's side, मतलब the Edgar must take Lear's side and now plans to go seek him out in the storm. He tells Edmund that there is a letter with the news of a French army locked in his room, and he asks his son to go and distract the Duke of Cornwall while while Gloucester goes onto the heath to search for Lear. He adds that it's imperative that Cornwall not notice his absence, otherwise Gloucester might die for his treachery. तो ये पूरा प्लान इसका डिस्कस कर रहा है कि भाई मैं फ्रेंच आर्मी को, क्योंकि कहीं लॉक्ड हो गए हैं, तो भाई मैं इनको हेल्प कर देता हूँ ताकि लियर को हेल्प हो जाए। मुझे बहुत बुरा लग रहा है लियर के लिए। अब ये सारा प्लान तो बता देगा जब ये ग्लॉसेस्टर चला जाता है। सो एडमंड प्राइवेटली रिजॉइसेस एट द अपॉर्चुनिटी, मतलब ये बहुत कनिंग है ये, और ये ऑडियंस से पूरा प्लान शेयर भी करता है। सो ही रिजॉइसेस अपॉर्चुनिटी की अब तो ठीक है, मज़ा आएगा, मैं तो फिर से इसको बिट्रे करूँगा, मैं फिर से इसकी बात बताऊँगा, कॉर्नवॉल मुझसे खुश हो जाएगा और मुझे रिवॉर्ड करेगा, इसको पनिश करेगा, तो एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे। सो ही प्लान्स टू बिट्रे हिज फादर इमीजिएटली एंड गोइंग टू कॉर्नवॉल टू टेल हिम अबाउट बोथ। द फर्स्ट इज ग्लॉसेस्टर्स प्लान टू हेल्प लियर, और सेकेंड वो ये चीज़ बताता है अबाउट द लोकेशन ऑफ द ट्रेटरस लेटर फ्रॉम द फ्रेंच, कि भाई फ्रेंच आर्मी एग्जैक्टली है कहाँ, उस लेटर के थ्रू पता चल जाएगा, और ग्लॉसेस्टर का क्या प्लान है, ये दोनों चीज़ें बताता है। तो एडमंड अब एक्सपेक्ट कर रहा है, कॉर्नवॉल खुश हो जाता है उसकी बात से, तो अब एडमंड एक्सपेक्ट कर रहा है टू इनहेरिट हिज फादर्स टाइटल, जो वो था ना ये अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन है ना ग्लॉसेस्टर, तब ये वाला टाइटल इसको मिल जाएगा। एंड फॉर्चून एज सून एज ग्लॉसेस्टर इज पुट टू डेथ, तो एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे। तो ये इस सीन में होता है। अगर हम थीम की बात करें तो बिट्रायल विद इन फैमिली, फिर से ये बिट्रायल हो गया। पहले यही थीम पहले वाले एक्ट्स में हमने पढ़ा जब दोनों डॉटर्स अपने फादर को बिट्रे करती हैं। अभी इन दिस सीन बिट्रायल कॉन्टिन्यूस टू पॉइजन रिलेशनशिप्स। Gloucester secretly remains loyal to Lear, but is aware that Regan, Goneril, and Cornwall are plotting against the king. Gloucester's loyalty is in danger now. एडमंड ग्लॉसेस्टर को अपना बेटा, मतलब एडमंड जो है वो ग्लॉसेस्टर का खुद का बेटा है, बायोलॉजिकली तो वो उसी का ही फादर है ना,
अपने फादर को लेकिन मतलब जो एडमंड है वो ग्लॉसेस्टर का बेटा है बायोलॉजिकली, भले ही वो इलेजिटिमेट है, लेकिन है तो वो उसका अपना बेटा, बट स्टिल वो अपने फादर को बिट्रे करने के लिए रेडी हो जाता है। वो सीक्रेटली ग्लॉसेस्टर के एक्शंस की इन्फॉर्मेशन कॉर्नवॉल को देता है और पूरा प्लान बता देता है। तो यहाँ इस सीन में हम क्या देख सकते हैं, बिट्रायल इन द पर्सनल रिलेशनशिप, जैसे पेरेंट चाइल्ड, वही पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप है, एंड इट बिकम्स द रिलेशनशिप वेरी फर्जाइल। और ये जो इस तरह का बिट्रायल है, इससे रिलेशनशिप जो है फर्जाइल हो गए हैं। और किस लिए हो गए हैं ये, मतलब बिट्रायल विद इन द फैमिली क्यों दिया गया, पहले भी जब लेयर को उसकी बेटियों ने दिया या ये ग्लॉसेस्टर को एडमंड ने दिया, रीज़न क्या है इसका, पावर की वजह से दिया और किसी वजह से नहीं दिया। नेक्स्ट है लॉयल्टी एंड रेजिस्टेंस। वाई ग्लॉसेस्टर रिस्क हिज लाइफ टू हेल्प किंग, रिस्क ही तो लिया है इसने। इट शोज़ ट्रू लॉयल्टी रिक्वायर्स पर्सनल सेक्रीफाइस। बिल्कुल, अगर आप किसी के लिए ट्रूली लॉयल हैं तो आपको अपनी लाइफ की भी रिस्क लेनी पड़ेगी, और ये ले रहा है अपनी लाइफ की रिस्क, होगा इसके साथ आज अब बहुत बुरा। एंड ड्यू टू लॉयल्टी he stands up against unjust authority, who are basically Regan and Cornwall, and standing up against the unjust is not easy and but morally necessary. So यहाँ पर ग्लॉसेस्टर के कैरेक्टर का एक स्ट्रॉन्ग मॉरल स्टेंस हमें दिखता है कि वो इनजस्टिस के सामने चुप नहीं बैठा है, वो करेगा, ज़रूर करेगा वो हेल्प, क्योंकि वो लॉयल है अपने किंग से। पावर स्ट्रगल, यहाँ पर पावर स्ट्रगल की बात करते हैं। सो एट एवरी लेवल, फैमिली हो या पॉलिटिक्स, पावर ग्रैबिंग चल रही है यहाँ पर। किंग लेयर से पावर गॉनरेल और रीगन छीन रही हैं, रीगन के थ्रू मतलब कॉर्नवॉल छीन रहा है, एडमंड अपने फादर से पावर छीन रहा है, तो एडमंड अपने फादर को आउटस्मार्ट करके खुद पावर चाह रहा है, रीगन और कॉर्नवॉल लियर को रिमूव करके कंट्रोल सारा ले रहे हैं। सो ये सीन हाईलाइट करता है कि पावर के लिए बिट्रायल एंड क्रूएलिटी को नॉर्मल बना दिया गया है यहाँ पर। मतलब बिट्रायल विद इन द फैमिली एंड पावर स्ट्रगल, ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। अगला है ब्लाइंडनेस, फिजिकल एंड इमोशनल। ग्लॉसेस्टर अभी तक इमोशनली ब्लाइंड है, वैसे ग्लॉसेस्टर फिजिकली तो ये आगे होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल ये इमोशनल है। वो समझ ही नहीं पा रहा कि एडमंड कितना डेंजरस है। बस एडमंड ने जो उसको कहा वो उसने मान लिया। जैसे लिया ने अपनी बेटियों के इंटेंशन गलत जज किए, वैसे ही ग्लॉसेस्टर भी अपने बेटे के इंटेंशन को गलत जज कर रहा है। सो फिज़िकल ब्लाइंडनेस का सिंबल प्रिल्यूड भी है, मतलब पहले से फिज़िकल ब्लाइंडनेस आगे होने वाली, तो अभी इसका प्रिल्यूड यहाँ पर है। और आगे जाकर ग्लॉसेस्टर लिटरली और मेटाफिजिकल दोनों तरह से ब्लाइंड हो जाएगा। तो मोटिव की अगर हम बात करें, लेटर्स एंड मैसेजेस, तो ग्लॉसेस्टर का एक लेटर रिसीव करता है फ्रांस के कैंप से। लेटर यहाँ सीक्रेट्स और सबवर्जन का टूल बन गए हैं। लेटर्स सीक्रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है लेटर, ठीक है, और मैसेजेस भी। सो कम्युनिकेशन हिडन हो गया है, ट्रुथ ओपनली शेयर नहीं कर पा रहे। मैसेज क्या है, अबाउट ट्रुथ, जो कि लेटर्स के थ्रू जा रहा है, मतलब सीक्रेटली जा रहा है। सब कुछ सीक्रेट प्लानिंग का हिस्सा बन गया है ये लेटर्स। दूसरा है फैमिली वर्सेस पॉलिटिकल लॉयल्टी। तो जैसे ग्लॉसेस्टर का जो स्ट्रगल है वो अपनी पॉलिटिकल लॉयल्टी की वजह से है, जो कि लियर के साथ है, और पर्सनल फैमिली लॉयल्टी जो है वो उसकी एडमंड के साथ है, इसीलिए वो उसको सब कुछ शेयर कर रहा है। तो यहाँ पर इन दोनों को कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। फैमिली लॉयल्टी का कॉन्फ्लिक्ट हो गया पॉलिटिकल लॉयल्टी। फैमिली लॉयल्टी उसने एडमंड के साथ दिखाई है कि इसको सारी बात बता दी, कुछ भी उससे छुपाया नहीं। पॉलिटिकल लॉयल्टी ये है कि अपनी लाइफ रिस्क में डालकर वो लियर को हेल्प कर रहा है। अगला है सो बेसिकली एडमंड जो है, मतलब इसी की बात कर रहे हैं हम। एडमंड अपनी फैमिली लॉयल्टी तोड़कर अपने एम्बिशन के साथ पॉलिटिकल गेम खेल रहा है, ठीक है। सो मोटिव जो है, मतलब ये जो मोटिव है ये दिखाते हैं कि प्ले में फैमिली बॉन्ड्स भी पॉलिटिकल एडवांटेज के टूल बन गए हैं। अब एक बात बताइए, मतलब समझिए कि
एडवर्ड ने एडगर को रास्ते से हटाकर ग्लॉसेस्टर का ट्रस्ट क्यों जीता? अपने पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए, बस यही एक रीज़न था, वरना उसको ग्लॉसेस्टर और एडगर को अलग करना, उनको दूर करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लास्ट है इसमें डिस्गाइज एंड फॉल्स अपीयरेंस। जैसे एडमंड अपने आप को एक लॉयल सन दिखाता है, जबकि वो सबसे बड़ा ट्रेटर है, सबसे बड़ा फ्रॉड है वो। रियल इमोशंस और फेक अपीयरेंस के बीच का डिफरेंस शार्पली हाईलाइट होता है यहाँ पर। ये मोटिव रीइंफोर्स करता है कि अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, दिस इज अ सेंट्रल टेंशन इन द प्ले किंग लियर। इफ यू टॉक अबाउट की कोट्स, तो ग्लॉसेस्टर जो है ही वॉज टॉकिंग रिगार्डिंग लियर, इफ देयर इज डिवीजन betwixt the dukes and the worst matter that I have received a letter this night, it is dangerous to be spoken। तो ये आपको लाइन ऑफ प्ले के 7 से लेकर 10 लाइन्स के बीच मिल जाएगा, ठीक है। सो ग्लॉसेस्टर इज गिविंग अ हिंट टू रीगन एंड गॉनोरिल, मतलब ग्लॉसेस्टर ये जो हिंट देता है कि रीगन और गॉनरेल के बीच में डिवीजन हो रहा है, लिखा ना, देयर इज डिवीजन बिटविक्स्ट द ड्यूक्स। ड्यूक्स यहाँ पर कौन है? एक रीगन है और एक गॉनरेल है, तो इन दोनों में भी डिवीजन हो रहा है और इनके हस्बैंड्स में भी डिवीजन हो रहा है, ठीक है। और आई हैव रिसीव्ड अ लेटर दिस नाइट, इट इज़ डेंजरस टू बी स्पोकन। तो फ्रेंच फोर्सेस लियर को हेल्प करने की तैयारी में है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और अनसर्टिनिटी यहाँ हाईलाइट होती है। जैसे बोला ना, डेंजरस टू बी स्पोकन, ये फ्रेज शो करता है कि सच बोलना, डेंजरस टू बी स्पोकन मतलब ये सच बोलना भी कितना डेंजरस काम बन गया है। तो यहाँ पर हमें पॉलिटिकल इंट्रिग्यू दिखता है और बिट्रायल दिखता है। ग्लॉसेस्टर कहता है कि देयर इज़ अ डिवीजन बिटविक्स्ट द ड्यूक्स, ड्यूक्स के बीच में भी अब टेंशन बन गई है। वर्स्ट मैटर ये है कि मुझे ये लेटर इस रात मिला है और इसके बारे में बात करने बहुत डेंजरस है। नेक्स्ट है, इफ़ आई डाई फॉर इट एज नो लेस इज थ्रेटन मी, द किंग माई ओल्ड मास्टर मस्ट बी रिलीव्ड। ये 16 to 17 लाइन पर है। सो ग्लॉसेस्टर जो है वो ये जानता है कि if I help my master, then maybe मुझे अपनी I will lose my life, है ना। if I die for it, भाई मरना भी पड़े इसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। as no less is threatened me, मतलब मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर मुझे मरना भी पड़े। द किंग माई ओल्ड मास्टर मस्ट बी रिलीव्ड, लेकिन मेरे जो मास्टर है वो तो रिलीव्ड हो जाएंगे ना। ग्लॉसेस्टर जानता है कि लियर की मदद करने पर उसकी अपनी जान को भी खतरा हो सकता है, फिर भी वो अपनी लाइफ से ऊपर रखता है, अपनी सेफ्टी से ऊपर रखता है लॉयल्टी को। ही चोज लॉयल्टी ओवर हिज ओन सेफ्टी एंड हिज लाइफ। सो थ्रू दिस लाइन वी कैन सी ग्लॉसेस्टर्स मॉरल करेज, we can see Gloucester's moral, courageous and personal integrated। तो हमें यहाँ पर ग्लॉसेस्टर की मॉरलिटी का, उसकी करेज, उसकी पर्सनल इंटीग्रिटी का पता चलता है इस लाइन से कि उसको मरना भी पड़ जाए, उसकी लाइफ पे भी कोई खतरा आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट उसके किंग तो रिलीव्ड हो जाएंगे ना। तो यहाँ पर भी ये लॉयल्टी का थीम दिखता है हमको। नेक्स्ट है दिस कर्टेसी फॉरबिड दी का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, यू शेल दैट यू इंस्टेंटली नो एंड ऑफ दैट लेटर टू। तो यहाँ पे ये एडमंड कह रहा है अलग से कि एडमंड अपने फादर ग्लॉसेस्टर का जो लेटर है, जो लियर की मदद के लिए था, अब वो एक्सपोज करने का प्लान बना रहा है। वो अपने फादर को ट्रैप करके कॉर्नवॉल के साथ अपनी लॉयल्टी दिखाना चाहता है। ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है फिलियल बिट्रायल का, जिसमें हम अपने फ़ायदे के लिए अपने खुद के फादर को चीट कर रहा है। दिस कर्टेसी फॉरबिड दी शेल द ड्यूक इंस्टेंटली नो ऑफ दैट लेटर टू, मतलब इस लेटर के बारे में अगर पता चल जाए
इसको, मतलब जो अब जिसके हाथ में पावर है, तो मतलब जो ड्यूक है उसको पता चल जाए तो उसके लिए बड़े फ़ायदे की बात है। लास्ट है एडमंड का ही, द यंगर राइजेस व्हेन द ओल्ड डॉथ फॉल। तो ये एडमंड का अपॉर्चुनिस्टिक सोच है, ये जो लाइन है एडमंड की, जो एक अपॉर्चुनिस्टिक सोच है उसको दिखाता है। ये कह रहा है कि यंगर तब आगे बढ़ते हैं, राइज करते हैं जब ओल्ड गिरते हैं। तो ओल्डर जनरेशन की बात हो रही है यहाँ पर और यंगर जनरेशन की बात हो रही है। ओल्डर जनरेशन में लियर और ग्लॉसेस्टर है, वो जैसे ही गिरेंगे तो यंगर वंस जो हैं वो पढ़ेंगे। और यंगर वंस कौन हो गए? एडमंड खुद हो गया, कॉर्नवॉल हो गया, रीगन और गॉनरेल हो गई। तो ये यंगर से अपने आप को जोड़ रहा है, ओल्ड से अपने फादर को, लियर को जोड़ रहा है कि जब वो आगे, मतलब ये जब जब बूढ़े लोग, पुरानी जनरेशन गिरती है तभी ही नए लोग आ पाते हैं, नए लोग का राइज होता है। तो ये कोड एक नेचुरल ऑर्डर के कोलैप्स और सोशल कियोस का सिंबॉलिक मार्कर है। एडमंड की रूथलेस एम्बिशन और प्रैक्टिकल सिनिज्म यहाँ पर पीक पर है। तो यहाँ पर हमको कुछ थीम्स के बारे में पता चलता है, जैसे एम्बिशन, पावर एंड स्ट्रगल। अब ये सीन 4, ये एक और पार्ट है हीथ का और नियर अ हॉवेल। इसमें भी कैरेक्टर्स है लियर, केंट, फूल, एडगर। एडगर यहाँ पर एडगर नहीं है, मतलब पुअर टॉम है, ठीक है। सो वी टॉक अबाउट प्लॉट। सो लियर सीज एडगर एज अ पुअर टॉम, ये देखो दिख रहा है ना इसको, पुअर टॉम दिखता है, and begins to empathize with the poor. His madness deepens as he reflects on human vulnerability. Gloucester finds them and offers help. Kent leads Lear through the storm to the hovel. He tries to get him to go inside, but Lear resists, saying that his own mental anguish make him hardly feel the storm. He sends his fool inside to take shelter and then kneels and prays. He reflects that as king, he took too little care of the rest and homeless, who have scant protection from storms such as this one. So the fool runs out of the hovel claiming that there is a spirit inside, and the spirit turned out to be Edgar in his disguise as a Tom. थोड़ा कॉमिक सीन है यहाँ पर, वो बाहर आ जाता है ऐसे कि भूत है यहाँ पर, आत्मा है यहाँ पर, अब वो टॉम होता है। सो एडगर प्लेज द पार्ट ऑफ द मैडमैन बाय कंप्लेनिंग दैट ही इज़ बीइंग चेस्ड बाय अ डेविल। वो भी खुद बोल देता है, वो पागल होने का नाटक कर रहा है ना अभी, कहता है कि मेरे पीछे तो एक डेविल पड़ा है। ही एड्स दैट fiends possesses and inhabit his body. Lear, whose grip on reality is losing, sees nothing strange about these statements. He sympathizes with Edgar, asking him whether bad daughters have been ruin of him as well. तो पूछता है, भाई तुमको भी तुम्हारी बेटियों ने धोखा दिया है क्या? मतलब उससे बहुत एम्पैथी कर रहा है, बल्कि सिंपैथी भी नहीं बोलेंगे, एम्पैथी कर रहा है इससे। ये लियर मतलब सिंपैथी ही कर रहा है ये इसको, मतलब इसके दुख को अपने दुख से कंपेयर कर रहा है कि ये भी शायद ऐसी बेटियों को सताया हो सकता है। लियर आस्क्ड द डिस्गाइज एडगर व्हाट ही यूज्ड टू बी बिफोर ही वेंट मैड एंड बिकेम बेगर। तो एडगर बोलता है कि भाई मैं तो बहुत अमीर कोर्टियर था जिसने अपने सारे दिन बहुत ही अच्छे से बिताए विद हैविंग सेक्स विद मेनी विमेन एंड ड्रिंकिंग वाइन। तो बोलता है वो, ही वॉज वंस अ वेल्दी कर्टियर who spent his days in a very lavish life. Observing Edgar's nakedness, Lear tears off his own clothes in sympathy. वो देखता है कि बेचारा पहले बहुत अमीर था, एडगर मतलब पुअर टॉम बहुत अमीर था, अभी देखो कैसा है बेचारा, निकेड है अभी तो काफ़ी। तो लियर अपने कपड़े उतार के उसको देता है सिंपथी में। ग्लॉसेस्टर कैरिंग अ टॉर्च कम्स लुकिंग फॉर द किंग। He is unimpressed by Lear's companions. वो जो लियर के साथ है, ये फूल है, अब एक बेगर भी हो गया जो कि मैड भी है,
तो इसके साथ साथ जो लोग हैं उनको देख कर वो इतना थोड़ा खुश नहीं होता. एंड ही ट्राइज टू ब्रिंग लियर back inside the castle with him despite the possibility of evoking Regan and Goneril's anger. वो फिर भी कहता है कि चलो मेरे साथ अंदर चलो. Kent and Gloucester finally convince Lear to go with Gloucester, but Lear insists on bringing the disguised Edgar too, whom he has begun to like with him. कहता है भाई मैं अकेले जाऊँगा, इस बेचारे को भी ले चलो, ये भी बेचारा बड़ा दुखी है, शायद इसकी भी बच्चों ने इसको धोखा दिया है, मतलब इसको बहुत सिंपैथी हो रही है, इसको लेकर आने की बात कर रहा है. So let's talk about themes. The first one is madness and loss of reason. So Lear's mental disintegration is vividly shown here. Storm की physical chaos के parallel Lear के mind का internal storm भी है, जो कि reality और illusion का भेद भूलने लग रहा है. जो वो इल्यूजन को ही सच्चाई समझ रहा है, सच्चाई को इल्यूजन समझ रहा है. जब लियर कहता है ना कि माई विट्स बिगिन टू टर्न, वो अपनी मैडनेस को कॉन्शियसली एक्सपीरियंस कर रहा होता है. हमने पिछले वाले एक्ट में पढ़ा था ना, इससे पहले वाले में पढ़ा था हमने, नहीं एक मिनट, ये रहा, माई विट्स बिगिन्स टू टर्न. तो वो ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि उसको फील हो रहा होता है कि भाई मेरी जो कॉन्शियसनेस है वो थोड़ी सी मतलब मैडनेस की तरफ जा रही है, मैं पागल होता जा रहा हूँ. एक्सपीरियंस करता है ये मैडनेस. यहाँ सिर्फ एक मेडिकल कंडीशन नहीं है, बल्कि एक इमोशनल कोलैप्स भी है और एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का मेटाफर भी है. नेक्स्ट है एम्पैथी एंड ह्यूमन सफरिंग. तो लियर अपनी खुद की दुख भरी हालत देखकर दूसरे के दुख को भी पहली बार सेंसिटिविटी की तरफ देखता है, सेंसिटिविटी से देखता है. इससे पहले ये खुद राजा था, जबकि इसका ये फ़र्ज़ बनता था कि ये अपने राज्य के लोगों के दुख दर्द को समझे, लेकिन तब ये नई चीज़ समझता था. हमेशा अपने कोर्ट में रहता था, अपनी तारीफ़ें सुनना चाहता था. लेकिन अब जब इसके पास खुद पावर नहीं रही, ये खुद हेल्पलेस हो गया, होमलेस हो गया, तूफ़ान में दर बदर भटक रहा है. अब जब इसे लोग अपने जैसे लोग इसको जब पुअर कंडीशन में दिख रहे हैं, तो इसको अब फील हो रहा है, अभी उनसे सेंसिटिव हो रहा है, मतलब अपनी सेंसिटिविटी इसकी काम कर रही है. पहली बार इसे लोगों का दुख अपने दुख से भी ज़्यादा लग रहा है. पहली बार वो पुअर नेकेड रेस्ट लोगों के बारे में सोच रहा है, जो बिना शेल्टर के ऐसे कितने स्टॉर्म्स में रह चुके हैं, हमेशा से ऐसे ही रहते हैं. इस रिफ्लेक्शन से लियर का मॉरल अवेकनिंग भी होता है. पहली बार वो अपने किंगली प्रिविलेज को इंसानियत के असली दर्द मतलब ये अपने किंगली प्रिविलेज को साइड करके इंसानों का जो असली पेन है, उनकी जो सफरिंग है, उसको समझने लगता है. अगला है नेचर एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ इनर टर्मोइल. स्टॉर्म यहाँ एक्सटर्नल फोर्स नहीं, बल्कि लियर के अंदर के इमोशनल स्टॉर्म का मिरर है. यह मैं शुरू से एक ही बात बोल रही हूँ कि एक स्टॉर्म बाहर है और एक स्टॉर्म उसके मन के अंदर है, दिल में है उसके. नेचर इज़ अनकंट्रोल्ड हेयर, जस्ट लाइक लियर का माइंड भी अब कंट्रोल के बाहर जा रहा है. इस सीन में नेचर और ह्यूमन कंडीशन की हेल्पलेसनेस का डायरेक्ट लिंक दिखाया गया है. नेक्स्ट है डिस्गाइज इन रियलिटी. पुअर टॉम बेचारा डिस्गाइज्ड है, ठीक है, और ये लियर और ऑडियंस दोनों के सामने स्टेज पर आता है. एडगर का डिस्गाइज इस मोटिव को डिपेंड करता है कि रियल सफरिंग के पीछे रियल आइडेंटिटी छुपी होती है. तो यहाँ पर थ्रू द कैरेक्टर ऑफ एडगर एंड हिज डिस्गाइज, तो हम ये देखते हैं कि भाई रियलिटी छुपी हुई है डिस्गाइज में, ठीक है. लियर खुद भी एक तरह से डिस्गाइज में आ चुका है. जो पहले किंग था और अब एक मैड बैगर से कम नहीं दिख रहा है. पुअर टॉम और लियर ये दोनों अभी इक्वल पोजीशन पर है. लास्ट है इसमें जस्टिस एंड मोरल रिफ्लेक्शन. लियर अपने एक्शंस और अपने राजा होने के दौरान जो इनजस्टिस कर रहा था, अब उस पर गिल्ट कर रहा है. मैंने जैसे पहले आपको बताया ना कि जब वो खुद राजा था, जब उसका पावर थी, तब तो वो कोर्ट में बैठा रहता था, अपने दरबार में बैठा है, अपने लोगों से तारीफ़ें सुन रहा है, बच्चों से तारीफ़ें सुन रहा है. अब जब उसके पास पावर नहीं रही है, तो जस्टिस और मोरल रिफ्लेक्शन के चलते उसको बड़ा गिल्ट लग रहा है.
उसका एक डायलॉग भी है ना, एक्सपोज दाई सेल्फ टू फील वॉट रिचेस फील। ये आप प्ले में पढ़ लेंगे ये लाइन। ये एक सेल्फ एक्यूजेशन है कि आप सेल्फ गिल्टी मान रहे हो ना खुद को, और एक स्पिरिचुअल रियलाइजेशन का पार्ट है। सो जस्टिस यहाँ एक पर्सनल रियलाइजेशन के लेवल तक आ जाता है। इंस्टीट्यूशनल जस्टिस अब इररिलेवेंट लग रहा है इसको लग रहा है कि भाई मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मतलब मेरे राज्य में, मेरे किंगडम में इतने भी दुखी लोग हैं, उनके पास घर नहीं है, कपड़े नहीं है, कितनी ठंड में, कितनी स्टॉर्म में ये लोग बेचारे इधर से उधर भटकते रहते हैं, और मैं आराम से लेविश लाइफ जीता रहता हूँ। ये पुअर टॉम भी बिल्कुल मेरे जैसा, इसकी बहुत अच्छी लाइफ थी, बहुत अच्छे अमीर था ये, अभी ये भी ऐसे कंडीशन में हो गया, और ऐसे ना जाने कितने लोग हैं जो हो चुके हैं। मोटिव्स की बात करें तो स्ट्रॉम एज अ सिंबल ऑफ क्योर्स। सो नेचुरल स्ट्रॉम लियर के साइकोलॉजिकल स्टेट को पैरेलल करता है। स्ट्रॉम क्योर्स डिस्ट्रप्शन वल्नरेबिलिटी का विजुअल सिंबल है। अगला है नेकेडनेस एंड स्ट्रिपिंग ऑफ आइडेंटिटी। जब लियर पुअर टॉम को दिखता है तो वो कहता है इज़ मैन नो मोर देन दिस। ये बहुत फेमस डायलॉग है इसका। यहाँ पर स्ट्रिपिंग अवे ऑफ क्लोथिंग को भी सिर्फ फिजिकल नहीं है, ये डिग्निटी, स्टेटस और ईगो के भी ख़त्म होने का सिंबल है। मतलब जब मैंने बताया ना आपको कि वो उसके कपड़े देखता है, वो उसकी नेकेडनेस देखता है ना पुअर टॉम की, तो वो अपने कपड़े स्ट्रिप अवे करके वो एडगर यानी कि पुअर टॉम को ऑफर करता है। तो यहाँ पर वो अपनी ईगो को भी दे रहा है, मतलब ईगो को उतार रहा है, वो सिर्फ अपने कपड़े नहीं उतार रहा है, वो यहाँ पर अपनी डिग्निटी, अपना स्टेटस और अपना ईगो, ये तीनों ही चीज़ों को वो उतार रहा है, ख़त्म हो रही है उसकी। सो लियर के लिए नेकेडनेस अब असली ह्यूमन कंडीशन का सिंबल बन जाता है। जो वो कहता है ना इज़ मैन नो मोर देन दिस, मतलब वो जो पुअर टॉम है वो नेकेड है, वही असली इंसान है, वही इंसानियत की असली इंसानियत नहीं सॉरी वही असली इंसान की हालातों की सिंबल है, असली एकदम असली ह्यूमन कंडीशन का सिंबल बन जाता है लियर के लिए अब नेकेडनेस। मैडनेस एज इंसाइट। लियर जब मैड होने लगता है तब वो दुनिया की सच्चाई को ज़्यादा क्लियर देख पा रहा है, बल्कि जब वो अपने क्लियर स्टेट ऑफ माइंड में था, ठीक ठाक था उसका दिमाग, तब नहीं देख पा रहा था, अब देख पा रहा है ज़्यादा क्लियर, दुनिया की सच्चाई को समझ पा रहा है। सो इस मोटिव का आयरनी ये कि विजडम कम्स थ्रू मैडनेस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिटनेस कम थ्रू मैडनेस। आप जब आंसर राइटिंग करेंगे ना तो इस तरह के कोट्स को आप लिख सकते हैं अपने आंसर में, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अब की कोट्स की बात करते हैं। देखिए ये जो पहला डायलॉग है ना ये काफ़ी बड़ा है। ये 28 से लेकर 34 तक है, ऑलमोस्ट 6 लाइन्स है, ये 6-7 लाइन्स है ये। चलिए पढ़ते हैं इसको। पुअर नेकेड wretches, wheresoever you are, that bite the pelting of the pitiless storm. How shall your houseless head and unfed sides, your looped and unwindowed raggedness defend you from seasons, oh such these? Oh, I have taken too little care of this. Take physic, pomp, expose thyself to feel what wretches feel. तो यहाँ पर जो ये स्पीकर है वो लियर है। तो लियर स्ट्रॉम के बीच में जब अपनी माइजरी फेस कर रहा होता है, द स्ट्रॉम के बीच में जब ये माइजरी फेस कर रहा होता है, तब वो दुनिया के गरीब लोगों के दुख के बारे में सोचता है। पहली बार लियर को अपनी प्रजा के, जो उसकी पब्लिक है, उसके रियल स्ट्रगल्स का एहसास होता है। ये रियलाइजेशन लियर के कैरेक्टर आर्क में एक मेजर टर्निंग पॉइंट लाता है, जो अपने रॉयल एरिगेंस को छोड़कर ह्यूमिलिटी और एम्पैथी सीखता है, मतलब ह्यूमैनिटी सीखता है और एम्पैथी सीखता है। जैसे ये यहाँ पे वर्ड है पिटीलेस स्ट्रॉम, ये नेचर के, पिटीलेस स्ट्रॉम का यहाँ मतलब हो गया नेचर के इनडिफरेंट क्वालिटी, उसका सिंबल है ये, मतलब नेचर का इनडिफरेंट क्वालिटी, मतलब नेचर जो है वो तो ऐसे नहीं कि डिफरेंट तरीके से क्रूअल है, अगर वो क्रूअल है तो वो सबके साथ क्रूअल है, चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे अच्छा है, चाहे बुरा है। अगर तूफ़ान आएगा और कोई बाहर घूम रहा है तो
वो तूफान सबको इक्वली ही डिस्ट्रॉय करेगा। तो पिटीलेस स्ट्रॉन्ग मतलब यहाँ पर इनडिफरेंट क्वालिटी है, जो रिच पुअर किंग बेगर में कोई फ़र्क नहीं करता। और रियलिटी भी यही है, नेचर का भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आज गर्मी है तो वो सबके लिए गर्मी है। हाँ, ये है कि अमीर के पास एसी है, गरीब के पास रहने को शायद छत भी ना हो, और मिडिल क्लास के पास कूलर है, अपर मिडिल क्लास भी एसी है, उनके पास सस्ता एसी है, और जो बड़े ज़्यादा अमीर लोग उनके पास और बढ़िया एसी है, उनके घर के हर कोने में एसी है। जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके घर में सिर्फ एक एसी है, सब उसी रूम में रह रहे हैं। तो ये डिफरेंसेस हो सकते हैं जो मैंने क्रिएट किए हैं, बट नेचर सबको एक जैसे ही ट्रीट करती है, ठीक है, मतलब कोई फ़र्क नहीं रखती वो। सो ये जो लाइन है ना, लियर अपने आप को और दूसरे प्रिविलेज लोगों को एड्रेस करता है। ये जैसे इस लाइन से ये कहाँ गई, टेक फिजिक पॉम्प एक्सपोज दाई सेल्फ टू फियर वॉट रिचेस फील। तो यहाँ पर ये अपने आप को और जो दूसरे प्रिविलेज लोग हैं उनको एड्रेस कर रहा है। फिजिक का मतलब यहाँ पर है मेडिसिन। यहाँ लियर कह रहा है कि पॉम्प यानी कि रॉयल लग्जरी जो है पॉम्प का इलाज है अपने आप को हार्डशिप के सामने एक्सपोज करना। मतलब वो कह रहा है कि ये जो तुम्हारे पास जो लग्जरियस लाइफ है, इसका एक ही इलाज है कि तुम अपने आप को हार्डशिप्स के सामने एक्सपोज करो। ये एक स्ट्रॉन्ग मॉरल मैसेज है। जो रियल लीडरशिप तभी आती है जब रूलर्स अपनी प्रजा के दुख को खुद महसूस करते हैं। हमारे देश में से बहुत सारे राजा रहे हैं, मुग़लों के समय में, मुग़लों से पहले में भी और उससे पहले में भी और बहुत पहले में भी, जो अपने प्रजा के दुखों को देखने के लिए खुद उनके बीच जाते थे, और तभी वो समझ पाते थे कि हमारी प्रजा को क्या दुख है। अगर कोई राजा ऐसा नहीं करता है, इसका मतलब वो एक अच्छा राजा नहीं है। तो राजा का मतलब ये नहीं होता है कि आप एक सिंहासन में बैठ गए, आपके पास बहुत बड़ा दरबार है, आपके पास हीरे जवाहरात हैं, बहुत अमीर हो आप। राजा का मतलब ये नहीं होता। राजा का मतलब होता है जो अपने लोगों के लिए रहे, अपने लोगों के लिए लड़े, अपने लोगों के लिए काम करे, अपनी सेफ्टी से पहले उनकी सेफ्टी का ध्यान दे, अपने फूड से पहले उनकी फूड सिक्योरिटी पे ध्यान दे। तो यहाँ पर इस पूरे इस 6-7 लाइन्स में यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग मॉरल मैसेज है कि रियल लीडरशिप तभी आती है जब राजा अपनी प्रजा के दुख को खुद महसूस करता है, जब अपने आप से पहले प्रजा को रखता है। ये लियर के अंदर चालू होने वाले सेल्फ अवेयरनेस और गिल्ट का इंडिकेटर भी है, ठीक है। मैंने शुरू में आपको एक लाइन बताई थी ना पुअर टॉम के बारे में, इज़ मैन नो मोर देन दिस। ये भी लियर का डायलॉग है। ये 99 से लेकर 100 में है, ये इस वाले सीन में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर लियर जब एडगर यानी कि पुअर टॉम को बेगर के रूप में देखता है ना, तब वो ये लाइन बोलता है, इज़ मैन नो मोर देन दिस, कंसीडर हिम वेल। मतलब यहाँ पर लियर रियलाइजेस दैट सिविलाइज्ड मैन और बीस्ट में बहुत कम डिफरेंस है। एक सिविलाइज्ड मैन और बीस्ट में बहुत कम डिफरेंस है। नो मोर देन दिस का मतलब है कि जब हम अपने कपड़े, स्टेटस और अगर टाइटल हटा दें तो हम एक वल्नरेबल क्रीचर बन जाते हैं, लाइक अ बीस्ट। हम में और जानवरों में सिर्फ यही फ़र्क है कि हमारे पास कपड़े हैं, हमारे पास स्टेटस है और हमारे पास एक टाइटल है। बाकी अगर हम ये तीनों चीज़ें हटा दें, अपने कपड़े हटा दें, अपना स्टेटस हटा दें, अपना टाइटल हटा दें, तो हम बीस्ट से ज़्यादा नहीं हैं, हम भी वैसे ही हैं। तो यहाँ लियर का एक एग्जिस्टेंशियल मोमेंट है। वो ह्यूमन आइडेंटिटी को लेकर उसके डीप मतलब उसके बारे में डीप सोचता है कि इंसान क्या है, मतलब जो इंसान सिविलाइज मैन क्या है और बीस्ट क्या है। दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि वो सिविलाइज्ड है, मतलब उसके पास उसने कपड़े पहने, उसके पास एक स्टेटस और एक टाइटल, और वो सोसाइटी में रहता है। अगर ये चीज़ें रिमूव कर दी जाएँ तो इंसान और बीस्ट में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। अगला है, ये भी लियर ने बोला है, ये 103 से लेकर 104 तक में, thou art the thing itself, unaccommodated man is no more but such a poor bare fogged animal as thou art। यहाँ पर पुअर टॉम को देखकर लियर इंसान की असली हालत को समझने लगता है।
मतलब जो ये लिखा है ना अनएकोमोडेटेड मैन, यहाँ मतलब है कि इंसान जो बिना कपड़े के, बिना शेल्टर के, बिना प्रिविलेज के, मतलब कोई एकोमोडेशन नहीं है उसके पास, कोई प्रिविलेज नहीं है, कोई शेल्टर नहीं, कोई कपड़ा नहीं है। पुअर बेयर फॉक्ड एनिमल्स, इसका मतलब ये है कि इंसान को सिर्फ सिंपल बायोलॉजिकल एग्जिस्टेंस के रूप में दिखाता है ये, कि वो पुअर है, बेयर है, जैसे जानवर नहीं होते हैं वैसे। तो लियर के लिए ये रियलाइजेशन बहुत ही पेनफुल है, क्योंकि अब तक वो अपने आप को एक डिवाइन किंग समझता था कि मैं तो मतलब भगवान से ऊपर ही हूँ, मतलब भगवान से कम नहीं हूँ मैं। और अब वो अपने आप को असली और नाखून, नेल्स और वो दांत वाले रूप को देख रहा है, जो कि एक बीस्ट से ज़रा भी कम नहीं है। मतलब फोक्ड एनिमल बोला ना, वो बिल्कुल बिल्कुल जो बिल्कुल जानवर के जैसा है। पहले वो अपने आप को बिल्कुल वैसा देखता था, जो बहुत प्रिविलेज था, जिसमें बहुत ईगो था, जो बहुत ही अपने आप को बहुत डिवाइन मानता था। लेकिन अब उसको समझ में आ गया कि ये सब चीज़ें कुछ मैटर नहीं करती हैं, ये तो आती जाती रहती है। असली में तो हम जो इंसान हैं वो हम जानवरों जैसे ही हैं, हम में और उनमें कोई फ़र्क नहीं है। लास्ट लाइन इसकी जो एज पुअर टॉम, एडगर कहता है ब्लेस दाई 5 विट्स। दाई मतलब योर, दो दी का मतलब यू होता है ना, इसका मतलब योर होता है। 5 विट्स यानी कि 5 सेंसेस की बात हो रही है। तो एडगर पुअर टॉम जो है उसका मतलब एडगर जो है ना पुअर टॉम का प्ले कर रहा है, मतलब उसकी तरह एक्ट कर रहा है, एज अ मैड मैन एक्ट कर रहा है। और लियर को देखकर ये बोलता है 5 विट्स, यानी कि 5 विट्स यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो कि मिडिवल आइडिया है। अगर हम 5 विट्स की बात करें, कॉमन सेंस, ठीक है, दूसरा है इमेजिनेशन, है, अगला है फैंटेसी, नेक्स्ट है एस्टिमेशन, लास्ट है मेमोरी। तो 1 2 3 4 5 ब्लेस दाई 5 विट्स, यानी कि एडगर ये कहता है कि वो लियर के सेंसेस को सरवाइव करने की ब्लेसिंग दे रहा है, कि तुम अपने इन सेंसेस को ब्लेस करो, मतलब ब्लेस करने की वो उसको एक तरह से ब्लेसिंग दे रहा है। वो है ना कि जैसे हम कहते हैं ना गॉड ब्लेस यू, हम उसको सामने वाले को हम ब्लेस करते हैं, ऐसे ये पुअर टॉम बनकर एडगर जो है पागलपने में अब इसके 5 विट्स को ब्लेस कर रहा है, क्योंकि वो सब देख रहा है ना कि ये जो मोमेंट है बहुत ही ट्रैजिक है, ट्रैजिक आयरनी, क्योंकि लियर का माइंड तो अभी टूट रहा है, वो तो बेचारा बहुत ज़्यादा बिखर रहा है। तो वो कह रहा है कि ब्लेस दाई 5 विट्स, मतलब अपने 5 विट्स को ध्यान रखो, ये इनको ब्लेस करो। मतलब तुम्हारा कॉमन सेंस काम करना चाहिए, तुम्हारी इमेजिनेशन काम करनी चाहिए, तुम्हारी फैंटेसी काम करनी चाहिए, एस्टिमेशन और मेमोरी तुम्हारी काम करनी चाहिए। तो इस लाइन से एडगर के कैरेक्टर के थ्रू मैडनेस और विजडम का कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले करता है और दिखता भी है। अब सीन 5 है, ये ग्लॉसेस्टर के कैसल का है, इसमें कॉर्नवॉल और एडमंड है, बहुत इंपॉर्टेंट सीन है ये। सो कॉर्नवॉल प्रेजेस एडमंड फॉर हिज लॉयल्टी, अभी इसको बता गया ना, ये इसको बता के चला गया ना, ये इसको लेटर भी दे दिया इसने। तो ही प्रेजेस एडमंड फॉर हिज लॉयल्टी एंड डिक्लेयर्स हिम द न्यू अर्ल ऑफ ग्लॉसेस्टर, बल नया अर्ल बना दिया, ग्लॉसेस्टर की पोजीशन दे दी इसको। एंड ग्लॉसेस्टर्स फेट इज सील्ड, डिसाइड हो गया है कि इसको तो पनिशमेंट मिलेगी ग्लॉसेस्टर को। इनसाइड ग्लॉसेस्टर कैसल, Cornwall vows revenge against Gloucester, whom Edmund has betrayed by showing Cornwall a letter that proves Gloucester's secret support of a French invasion. लेटर दिखा दिया उसने, साबित कर दिया लेटर दिखाकर एज अ प्रूफ, एज एन एविडेंस, कि देखो ये ग्लॉसेस्टर जो है ये फ्रेंच इन्वेजन को सीक्रेटली सपोर्ट करेगा। एडविन प्रिटेंड करता है कि भाई मुझे तो बड़ा धक्का सा लगा है, मेरे फादर जो है इस तरह आपको धोखा दे रहे हैं और मतलब बिट्रे कर रहे हैं आपसे ना, मुझे तो ये बात सुन के बड़ा धक्का लगा। मतलब यहाँ पर ना ये यहाँ पर भी झूठ बोल रहा है, इसको कोई धक्का थोड़ी लगा है, इसने तो बल्कि प्लान बनाया है। लेकिन ये ऐसे आया है कॉर्नवॉल के पास कि इसे बहुत दुख हुआ है कि इसके फादर ने आप लोग मतलब इन लोगों के साथ बिट्रे किया है, तो भाई वो उनको बताने आ गया है, क्योंकि वो उनका ये वेल विशर है।
So Edmund pretends to be horrified at the discovery of his father's treasure, but he is actually delighted. खुश है वो बहुत, क्योंकि पावरफुल कॉर्नवॉल जो है अब उसका एलआई बन गया है और उसको टाइटल भी दे दिया अर्ल का। ठीक है, ये आपको ना एक्ट थर्ड फिफ्थ एक्ट थर्ड के 5th सीन के 10th 11th लाइन में आपको ये मिल जाएगी, ये लाइन्स जिसमें ये से बोल रहा है ये कॉर्नवॉल सेंड्स एडमंड टू फाइंड ग्लॉसेस्टर, वो कहता है जाओ ढूंढ के लाओ इसको, और एडमंड रीजन्स टू हिमसेल्फ दैट इफ़ ही कैन कैच हिज फादर इन द एक्ट ऑफ हेल्पिंग लियर कॉर्नवॉल सस्पिशन विल बी कन्फर्म्ड। कहता है भाई मैं चाहता हूँ और मैं अगर उसे ढूंढ लूँगा तो कॉर्नवॉल का सस्पिशन जो है कन्फर्म्ड हो जाएगा। अब यहाँ पर हम थीम्स की बात करें तो बिट्रायल एंड पॉलिटिकल एम्बिशन, पहला तो ये है। सो एडमंड के एम्बिशन और बिट्रायल का थीम यहाँ और इंटेंस हो जाता है कि उसने बिट्रायल किया है टू हिज फादर टू गेट पॉलिटिकल पावर। उसका एम्बिशन था ना पॉलिटिकल एम्बिशन कि उसे पावर मिले, उसको अपने फादर की जगह मिले, उसके फादर को निकाल के फेंक दिया जाए और उसको वो जगह मिल जाए। सो एडमंड अपने ही फादर ग्लॉसेस्टर को बिट्रे करता है टू क्लाइम इन पॉलिटिकल पावर। ये सीन दिखाता है कि किस तरह सेल्फिश एम्बिशन ह्यूमन वैल्यूज़ को, मॉरल वैल्यूज़ को और ब्लड टाइज से ऊपर हो जाता है। पॉलिटिकल एम्बिशन पूरा करने के लिए अपने खुद के ब्लड रिलेशन को धोखा दे दिया। नेक्स्ट लॉयल्टी वर्सेस ट्रेजरी। यहाँ लॉयल जो ग्लॉसेस्टर है उसका लॉयल्टी किंग लियर के लिए स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एडमंड उस लॉयल्टी को एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो ये सीन दिखाता है कि कैसे लॉयल्टी वल्नरेबल चीज़ बन जाती है जब ट्रस्ट तोड़ दिया जाता है। अगला है डिसेप्शन एंड फॉल्स अपीयरेंस। एडमंड आउटवर्डली ओबीडियंट है और लॉयल लगता है कॉर्नवॉल के सामने, है वो कॉर्नवॉल की भी नहीं, कल को इसे फिर कभी मौका मिले कॉर्नवॉल की भी अगर जगह हथियाने की तो ये वो भी कर लेगा, ये कॉर्नवॉल को भी बिट्रे कर देगा, किंग बन जाएगा ये अगर उसको बिट्रे करेगा तो। ऐसा ऑल तो ऐसा प्ले में होता नहीं है, लेकिन मतलब अगर एडमंड को मौका मिलेगा ना तो ये कॉर्नवॉल के साथ भी डिसओबे कर जाएगा। लेकिन अभी ये आउटवर्डली शो कर रहा है कि मैं बहुत ओबीडियंट और लॉयल हूँ टू कॉर्नवॉल, लेकिन अंदर से वो मैनिपुलेशन और डिसीट का मास्टर है। इस सीन में अपीयरेंस और रियलिटी के बीच का गैप एक्सपोज किया जा रहा है। ठीक है, मोटिव्स की बात करें तो फैमिली कॉन्फ्लिक्ट है, जैसे लियर अपनी डॉटर्स की बिट्रायल सफ़र कर रहा है, वैसे ग्लॉसेस्टर भी अपने इलेजिटिमेट सन के बिट्रायल के शिकार पर है, आगे ये भी करेगा। फादर और चिल्ड्रन के बीच ट्रस्ट का कोलैप्स एक इम्पॉर्टेंट रिपीटेटिव पैटर्न बन गया है। नेक्स्ट है ब्लाइंडनेस एंड इनसाइट। फिगरेटिव ब्लाइंडनेस यहाँ पर ये है कि ग्लॉसेस्टर की इनएबिलिटी है कि वो एडमंड के बिट्रायल को नहीं देख पा रहा और वो स्ट्रांगली प्रेजेंट है। सो लेटर लिटरल ब्लाइंडनेस इज मोटिव का ड्रामेटिक इल्यूमिनेशन होगा, जबकि क्योंकि अब उसकी आंखें निकाल दी जाएंगी। अब ये की कोट्स है। कॉर्नवॉल कहता है एडमंड से, इफ़ ही बी टेकन ही शैल नेवर मोर बी फियर्ड ऑफ डूइंग हार्म। कॉर्नवॉल ग्लॉसेस्टर के बारे में बात कर रहा है यहाँ पर, जब ग्लॉसेस्टर की लॉयल्टी लियर के साथ कंफर्म होती है। सो कॉर्नवॉल यहाँ ग्लॉसेस्टर को ट्रेटर डिक्लेयर कर देता है कि भाई ये तो ट्रेटर है और इसने मतलब अगर इसने ऐसा किया है तो इसका मतलब ये कभी भी हमें नुकसान पहुंचा देगा। तो इस कोर्ट में नेवर मोर बी फियर्ड, ये नेवर मोर बी फियर्ड, इसका मतलब है कि ग्लॉसेस्टर को परमानेंटली एलिमिनेट करने का प्लान बन रहा है। तो यहाँ पर अथॉरिटी का रूथलेसनेस और इंटॉलरेंस के साथ फॉर्टिसेंट यहाँ दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट है एडमंड साइड में जाके बोलता है द यंगर राइजेस वेयर द ओल्ड होती, तो हम शायद पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। वही जबकि एडमंड खुद को यंगर रूप में इमेजिन करता है और ओल्ड जनरेशन यानी कि उसके फादर उनको हटाकर अपने आप को ऊपर कर रहा है। ये लाइन प्ले की सिनिकल फिलॉसफी बताती है, सर्वाइवल और सक्सेस के लिए बिट्रायल और क्रूएलिटी नेसेसरी है। ये जो स्टेटमेंट है ब्रॉडर पॉलिटिकल चेंज और जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट का भी सिंबल है। कॉर्नवॉल कहता है यू शैल बी आर्स नेचर्स ऑफ सच डीप ट्रस्ट वी शैल मच नीड। तो कॉर्नवॉल यहाँ एडमंड को ऑफिशियली रिवॉर्ड करता है उसकी लॉयल्टी के लिए, जो उसकी लॉयल्टी है भी नहीं।
ये ना यू शेल बी आर्स, मतलब तुम्हारी लॉयल्टी आज से हमारी हुई। इन्हें भी नहीं पता कि इसके अंदर तो लॉयल्टी नाम की चीज़ है ही नहीं। आयरनी यहाँ ये है कि एडमंड की जो लॉयल्टी है वो फेक है। कॉर्नवॉल जैसे क्रूअल रूलर्स को वैसे ही डिसीटफुल लोग चाहिए वैसे तो देखा जाए, तभी तो वो उसके लिए काम करेंगे। सीन ये दिखाता है कि बैड रूलर्स अपने आसपास मैनिपुलेटर्स और ट्रेटर्स को रखते हैं ताकि वो उन्हें प्रोटेक्ट करें। ट्रू लॉयल्टी हमेशा पनिश होती है, फॉल्स लॉयल्टी को रिवॉर्ड मिलता है। सो अगर हम कंक्लूजन एक्ट 3 के सीन 5 की शॉर्ट में बात करें तो यहाँ एडमंड की फुल विलियनी इस्टेब्लिश होती है। ट्रस्ट, लॉयल्टी, जस्टिस के कोर आइडियाज़ का डिस्ट्रक्शन है यहाँ पर। फुल विलियन दिखा दिया है इसको, एडमंड को। और ट्रस्ट, लॉयल्टी और जस्टिस, ये तो इसके तो पूरे आइडिया का डिस्ट्रक्शन हो गया है। ठीक है, ये सीन लार्जर ट्रेजेडी को और डीप करता है, जहाँ नेचुरल फैमिली और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स को कोलैप्स कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन है 6। ये प्ले थोड़ा बड़ा है, एक्ट थोड़ा बड़ा है, इसमें 7 सीन्स हैं। चलिए, ये एक फार्म हाउस का है नियर ग्लॉसेस्टर कैसल। तो यहाँ पर ग्लॉसेस्टर है, लियर है, एडगर है, केंट और फूल है। प्लॉट ये है कि लियर होल्ड्स अ मॉक ट्रायल अगेंस्ट हिज डॉटर्स। वो एक मॉक ट्रायल बना रहा है वो कि मैं अपनी बेटियों के साथ क्या करूँगा, एंड इस वजह से ये और मतलब डिसेंड कर रहा है, मतलब इट डिसेंडिंग डीपर इनटू मैडनेस। ग्लॉसेस्टर अर्जेस केंट टू हेल्प लियर एस्केप टू डोर। ग्लॉसेस्टर, केंट, लियर और फोक जो है वो एक छोटी सी बिल्डिंग में शेल्टर ले लेते हैं, जो एक फार्म हाउस होता है, ठीक है ना, फार्म हाउस होता है। मतलब ये ग्लॉसेस्टर की प्रॉपर्टी का ही एक हिस्सा होता है। ग्लॉसेस्टर लीव्स टू फाइंड प्रोविजंस फॉर द किंग। लियर, हुज माइंड इज वॉन्डरिंग इवन मोर वाइडली, holds a mock trial of his wicked daughters with Edgar, Kent and Fool presiding. Both Edgar and Fool speak like madmen, and the trial is an exercise in hallucinating and eccentricity. So Gloucester hurries back in to tell Kent that he has overheard a plot to kill Lear, कि भाई मैंने तो सुना है Lear को मार देंगे, किंग Lear को मार देंगे। So Gloucester begs Kent to quickly transport Lear towards Rover in the south of England, where Alice will be waiting for him. वो उसे भेजते कि वहाँ सेफ है ना, वहाँ पे फ्रांस आ गया होगा, फ्रेंच आर्मी आ गई होगी। So Gloucester, Kent and the Fool leave. Edgar remains behind for a moment and speak in his own. वो वहाँ पे पीछे रह जाता है और खुद से बात करता है अपनी अनडिस्गाइज वॉइस में अबाउट हाउ मच लेस इम्पॉर्टेंट हिज ओन सफरिंग फील्स नाउ दैट ही हैज़ सीन लेयर्स फार वर्स सफरिंग। तो उसको खुद को भी फील हो रहा है कि भाई लेयर तो बहुत बुरी कंडीशन में है, अब उसे क्या करना चाहिए, उसे ऐसे ही डिस्गाइज रहना चाहिए, अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखना चाहिए, या उसको अब लेयर को हेल्प करना चाहिए। तो ये तो है प्लॉट। अब हम थीम की बात करें, मैडनेस एंड लॉस ऑफ रीज़न। तो ये सीन लियर की मेंटल ब्रेकडाउन को और विजिबली इंटेंस करता है। ये लियर अपने दिमाग में एक मॉक ट्रायल अरेंज करता है अपनी डॉटर्स गॉनरेल और रीगन के अगेंस्ट, जैसे वो अभी भी किंग हो। मतलब मॉक ट्रायल है ना ये, कि भाई मैं किंग हूँ, मैं अपनी बेटी को बुलाऊँगा, उनसे क्वेश्चन करूँगा, वो मेरे सामने प्लेट करेंगी, फिर मैं उन्हें सज़ा दे दूँगा, इस तरह की। सो मैडनेस यहाँ रियलिटी और फैंटेसी के बीच एक ब्लर कर देती है। नेक्स्ट है जस्टिस एंड इनजस्टिस। लियर अपनी डॉटर्स को ट्रायल पर लाना चाहता है क्योंकि उसको लगता है कि उन्होंने उसके साथ सीवियर इनजस्टिस किया है। लेकिन आयरनिक पॉइंट ये है कि अब लियर के पास ना तो लीगल अथॉरिटी है ना एक्चुअल पावर है, कैसे लेकर आएगा वो ट्रायल के लिए। मॉक ट्रायल ही उसके पास एक रास्ता है अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकालने का, लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं है। अगला है लॉयल्टी एंड फ्रेंडशिप। सो ग्लॉसेस्टर का ट्रू लॉयल्टी लियर के साथ एविडेंट होता है जब वो उनको शेल्टर देने की कोशिश करता है। सिमिलरली केंट और फूल भी लियर के साथ बने रहते हैं, जबकि उन्हें पता है डेंजर है, फिर भी रहते हैं। देखिए यहाँ मोटिव है मॉक ट्रायल। लियर का डॉटर्स के अगेंस्ट मॉक ट्रायल करने का इम्पोर्टेंट मोटिव है जो जस्टिस एंड इनजस्टिस, ये
जस्टिस एंड इनजस्टिस के डिस्टॉर्टेड परसेप्शन को हाईलाइट करता है। रियल जस्टिस यहाँ एब्सेंट है और सिर्फ एक डेल्यूजनल ट्रायल ही बचा है। सेकंड है यहाँ पर स्ट्रॉम एंड इनर टर्मोइल। अब भी स्ट्रॉम चल रहा है जो लियर के इनर क्योर्स और आउटर नेचुरल डिसऑर्डर का सिंबल है। मैडनेस एज इंसाइट। लियर जब अपनी मैडनेस में ट्रुथ बोलता है तो वो एक डीपर रियलिटी को टच करता है, जैसे अब वो डॉटर्स की क्वालिटी डिस्क्राइब करता है या जब इनजस्टिस के बारे में बात करता है। अब की कोड्स की बात करें अगर हम, तो पहला है then let them anatomize Regan, see what breathes out her heart. Is there any cause in nature that makes this hard hearts? लियर बोल रहा है ये। हाँ, तो लियर अपनी डॉटर्स के ऊपर अपना एंगर एक्सप्रेस कर रहा है ये डायलॉग के थ्रू। उनको डिसेक्ट करने की बात कर रहा है, जैसे जानना चाहता हो कि उनके दिल इतने क्रूअल क्यों हैं, उसने ऐसा किया क्या है अपनी बेटियों के साथ जो वो इतनी क्रूअल हो गई हैं। तो लियर की मैडनेस इस लाइन में विजिबल दिखती है, विजिबल है, लेकिन साथ ही उसका पेन और कन्फ्यूजन भी विजिबल है। वो पूछता है कि नेचर में कोई ऐसी चीज़ है जो इंसान के दिल को इतना हार्ड हार्टेड बना सकती है, मतलब क्या कभी ऐसा कुछ हुआ है। देखा ना, इज़ देयर एनी कॉज इन नेचर दैट मेक्स दीज हार्ट्स, ऐसा कुछ है इस दुनिया में जो इन दोनों को इतना क्रूअल बना दिया इसने। सो ये एग्जिस्टेंशियल डिस्पेयर दिखाता है। ह्यूमन क्रूअलिटी का कोई रैशनल एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है लियर का डायलॉग है ये। चेंज रिप्लेसेस एंड हैंडी डैंडी विच इज़ द जस्टिस विच इज़ द थीफ। तो लियर सोसाइटी के इनजस्टिस, लियर सोसाइटी के जस्टिस सिस्टम के हिपोक्रेसी को, मतलब लियर जो है सोसाइटी का जो जस्टिस सिस्टम है, लिखा है ना यहाँ पर, चेंजेस प्लेसेस हैंडी डैंडी विच इज़ द जस्टिस विच इज़ द थीफ। तो यहाँ पर जस्टिस सिस्टम की बात कर रहा है, लेकिन उसकी हिपोक्रेसी को हाईलाइट कर रहा है साथ साथ। ये लाइन बहुत ही पावरफुल है। लियर यहाँ कहता है कि अगर जज और क्रिमिनल अपनी अपनी जगह बदल लें, है ना, चेंज प्लेसेस, हैंडी डैंडी, मतलब अपनी अपनी जगह बदल लें, तो कौन जज और कौन क्रिमिनल पहचानना ही मुश्किल हो जाएगा, है ना। चेंज प्लेसेस, हैंडी एंड डैंडी, मतलब इधर अदला बदली कर दो तो कौन जज है और कौन चोर है, मतलब कौन क्रिमिनल है और कौन जज है, कौन जस्टिस है, ये इसकी पहचान होना मुश्किल हो जाएगा। सो सिस्टमैटिक इनजस्टिस और पावर स्ट्रक्चर के फ्लॉज को लियर अपनी मैडनेस के थ्रू यहाँ रिवील कर रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे अगर हमें कभी क्वेश्चन आता है कि राइट द कैरेक्टर ऑफ लियर या इस तरह की चीज़ें, या तो आप लियर की डायलॉग्स को वहाँ पर कोट कर सकते हैं, या जस्टिस के ऊपर जैसे क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, या तो थीव्स के ऊपर होंगे या मोटिव्स के ऊपर होंगे, उस पर आपको अपना आंसर देना होगा विद रेफरेंस एंड कोड्स। क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, चाहे आप BE में पढ़ते हो, चाहे आप MA में पढ़ते हो, चाहे आप UPSC के लिए पढ़ रहे हो। नेक्स्ट है ग्लॉसेस्टर का डायलॉग है ये। दो देयर विजडम बी इन फैशन येट देयर फॉले इज़ नॉट एट द प्राइस। सो ग्लॉसेस्टर जो है यहाँ एक सेकेंड, हाँ, ग्लॉसेस्टर जो है यहाँ कमेंट करता है कि पावरफुल लोग चाहे कितने भी वाइज दिखते हो, ठीक है ना, दो दे आर विजडम बी इन फैशन, पावरफुल लोग, दे आर मतलब पावरफुल लोग चाहे कितने ही वाइज दिखते हो, विजडम दिखती हो उनके पास, लेकिन उनकी फुलिशनेस जो होती है ना वो हिडन होती है, बट येट देयर फॉली इज़ नॉट एट द प्राइस। उनकी फुलिशनेस दिखती है, मतलब ग्लॉसेस्टर जो है इनडायरेक्टली गॉनरल और रीगल के विजडम को फॉल्स कह रहा है और एक्चुअल क्वालिटी पर कमेंट कर रहा है। ये कोट सुपरफिशियल अपीयरेंस और रियलिटी के बीच डिफरेंस को अंडरलाइन करता है। इस पूरे सीन में हमने देखा कि लियर्स ट्रायल सीन यहाँ हाईलाइट करता है कि जब सिस्टम कोलैप्स करता है तब इंसान अपने दिमाग में
ऑल्टरनेटिव सिस्टम क्रिएट करता है। भाई जैसे आपको इंसाफ नहीं मिला तो आप अपने माइंड में क्रिएट करोगे ना, भाई अगर ये चीज़ें सही ली जाती तो ये ऐसे हो जाता, ये वैसे हो जाता। सो लियर अपने सिंबॉलिक अथॉरिटी का यूज़ करके डॉटर्स को पनिशमेंट देना चाहता है, लेकिन उसके पास अब रियल पावर नहीं है, यही उसकी फेट है। ग्लॉसेस्टर का सीक्रेट प्लान लियर को हेल्प करना भी है और पॉलिटिकल डेंजर को पॉइंट करता भी है। लॉयल्टी डेंजरस बन गई है यहाँ पर। कैंटरफुल जैसे करेक्टर्स का लियर के साथ रहना ट्रू डिवोशन है और ह्यूमन कंपैशन को शो करता है, जो ट्रेजेडी के बैकड्रॉप में एक मॉरल लाइट जैसे काम करता है। सो एक्ट 3 सीन 6 एक हाईली सिंबॉलिक और इमोशनल इंटेंस सीन है। लियर के मैडनेस और डेस्परेशन यहाँ पीक पर है। जस्टिस सिस्टम का कोलैप्स और पॉलिटिकल, साथ ही साथ फैमिलियल बिट्रायल के आफ्टर मैथ इस सीन में कैप्चर किए गए हैं। ह्यूमन वल्नरेबिलिटी, लॉयल्टी, सिस्टम फेलियर यहाँ ट्रेजेडी को और डीप कर रहे हैं। लास्ट सीन है ग्लॉसेस्टर के कैसल में, ठीक है। यहाँ कॉर्नवॉल, रीगन, गॉनरेल और ग्लॉसेस्टर ये यहाँ पर कैरेक्टर्स हैं। प्लॉट इसका ये है कि ग्लॉसेस्टर इज़ कैप्चर इंटेरोगेटेड, ग्लॉसेस्टर को कैप्चर कर लिए, सवाल पूछ रहे हैं। कॉर्नवॉल उसकी आंखें निकाल लेता है और जो एक सर्वेंट जो है ना उसको बचाने आता है, जो उसको रोकने आता है कॉर्नवॉल को, वो उसको ही मार देता है। मतलब वो नहीं मारता, सॉरी, रीगन मार देती है। ये कॉर्नवॉल रीगन के साथ मिलकर ग्लॉसेस्टर की आइज़ निकाल रहा होता है, तभी एक सर्वेंट आता है उसको रोकने, लेकिन वो सर्वेंट जो कॉर्नवॉल को रोकने आ रहा था उसको रीगन मार देती है और कॉर्नवॉल जो है यहाँ पर और ग्लॉसेस्टर को फिर ऐसे फेंक देते हैं लोग। तो बैक इन ग्लॉसेस्टर कैसल, कॉर्नवॉल जो है वो ग्लॉसेस्टर के कैसल में, गॉनरेल जो है वो गॉनरेल को एक ट्रेजिनस लेटर देता है। वो लेटर में ये लिखा होता है कि वे फ्रेंच आर्मी आ रही है डोवर पर, और उसको कहता है कि इसको लो और दिखाओ अपने हस्बैंड को, एल्बनी को। फिर वो बाद में ये सर्वेंट को अपने साथ भेजता है टू एप्रीहेंड ग्लॉसेस्टर सो दैट ग्लॉसेस्टर कैन बी पनिश्ड। ही ऑर्डर्ड एडमंड टू गो विथ गॉनरेल टू एल्बनीज प्लेस सो दैट एडमंड विल नॉट हैव टू विटनेस द वायलेंट पनिशमेंट ऑफ हिज फादर। मतलब वो इसलिए भी भेज देता है ना उसको कि भाई वो नहीं देख पाएगा अपने फादर की ऐसे वायलेंट पनिशमेंट को। तो ऑसवेल्ड जो है वो, जो उसका स्टीवर्ड है गॉनरेल का, वो ये बात लेकर चला जाता है कि भाई ग्लॉसेस्टर ने लियर को हेल्प किया था टू एस्केप टू डोवर। ग्लॉसेस्टर को फिर पकड़ लिया गया और रीगन और कॉर्नवॉल के पास लाया गया। उन्होंने उसका बहुत ही क्रूअली ट्रीट किया, उसको थीफ की तरह उसको टाई करके रखा, इसको इंसल्ट किया और उसकी आंखें थी, मतलब उसकी, और उसकी जो वाइट बियर्ड थी उसको भी खींचा। फिर कॉर्नवॉल ने रिमार्क किया खुद को कि वो ग्लॉसेस्टर को मारेगा नहीं, लेकिन बहुत बड़ी सज़ा देगा। तो एडमिटिंग दैट ही हेल्प लियर, वो मतलब लियर को बोलता है कि भाई, सॉरी, ग्लॉसेस्टर को बोलता है कि तुम एडमिट करो कि भाई तुमने लियर को हेल्प किया है। तो फिर वो ग्लॉसेस्टर जो है कसम खाता है कि ही विल सी लियर्स रॉन्ग एवेंज्ड। कॉन्वर्ट रिप्लाई कि सीट शेल्ट दाउ नेवर, मतलब तुम तो नहीं देख पाओगे। मतलब कहता है ना कि मैं तो देखूंगा, लियर तुम लोगों को सबको सजा देंगे। तो कहते हैं नहीं, तुम नहीं देख पाओगे। और ऐसा कह के वो उसकी आइज़, एक आँख निकाल लेता है और उसको फेंक देता है फ्लोर पर। ग्लॉसेस्टर बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। ये एक्ट 3 के सीन 7 में 68 लाइन पर आपको मिल जाएगा। ग्लॉसेस्टर बहुत ज़ोर से चिल्लाता है दर्द से। रीगन कहती है कि इसकी दूसरी आँख भी निकालो। तो ग्लॉसेस्टर का जो सर्वेंट होता है इसी बीच में आता है उसको हेल्प करने और कहता है कि नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो कॉर्नवॉल जो अपनी तलवार निकाल कर उस सर्वेंट से लड़ने लग जाता है, बट रीगन जो है वो एक तलवार उठा लेती है, दूसरे सर्वेंट से मतलब ग्रैब कर लेती है और वो सर्वेंट को मार डालती है। लेकिन इसी बीच कॉर्नवॉल भी इंजर्ड हो जाता है, लेकिन वो उसकी आंखें तो निकाल ही देता है ग्लॉसेस्टर की। ग्लॉसेस्टर जो है वो अपने बेटे एडमंड को बुलाता है हेल्प के लिए, बट वो जो रीगन होती है वो उसको बताती है जैसे कि कोई विक्ट्री मिल गई हो कि ये एडमंड ही था जिसने हमें
कौन मतलब तुम्हारे बारे में बताया, मतलब कॉर्नवॉल को उसने बताया। ग्लॉसेस्टर को अब रियलाइज़ होता है कि एडगर ही उसका सही बेटा था जो उसको प्यार करता था, और उसने ही उसको उस पर डाउट किया, उसको नुकसान पहुंचाया। फिर वो प्रे करता भगवान से कि भाई एडगर को हेल्प मिले, एडगर ठीक होके वापस आ जाए, एडगर जो है वापस आ जाए उसके पास। रीगन और कॉर्नवॉल ऑर्डर दे ऑर्डर दैट ग्लॉसेस्टर बी थ्रोन आउट ऑफ द हाउस टू स्मेल हिज वे टू डोर। अब कॉर्नवॉल रियलाइज़ करता है कि उसके जो वूंड है ना, जो उसे चोट लगी है, वो बहुत ही हैवी है और उस पर एड काम नहीं कर रहा है। तो अब ये अकेला हो जाता है ग्लॉसेस्टर, मतलब लेफ्ट अलोन विद ग्लॉसेस्टर। कॉर्नवॉल और रीगन के जो सर्वेंट है वो बेचारे बहुत शॉक्ड हो जाते हैं और बहुत डर जाते हैं कि ये हुआ क्या, उनकी तो आँख निकाल दी गई है दोनों। तो दे डिसाइड टू ट्रीट ग्लॉसेस्टर्स ब्लीडिंग फेस एंड हैंड हिम टू ओवर द मैड बैगर टू लीड ग्लॉसेस्टर वेयर ही विल। तो मतलब डिसाइड करते हैं कि भी हम इसको ट्रीटमेंट कराएंगे, इसका थोड़ा मतलब ट्रीट कराएंगे इसका ब्लीडिंग फेस को, और इसको मैड बैगर को दे देंगे, जहाँ ये जाना चाहे वो चला जाएगा। मतलब काफ़ी बुरा हुआ इसके साथ। ये सीन बहुत ही क्रूअल है, बहुत ही क्रूएलिटी यहाँ दिखाई गई है और इनह्यूमेन है ये सीन काफ़ी। मतलब किसी एक इंसान दूसरे इंसान की आंखें निकाल रहा है, सोच के कितना बुरा लगता है। ये बहुत ही घिन आती है इस बात से कि एक इंसान दूसरे इंसान के साथ कैसे रह सकता है, ये कितना ब्रूटल है। तो थीम्स की बात करें अगर हम, तो क्रूएलिटी एंड ब्रूटैलिटी है। सीन 7 में क्रूएलिटी का हॉरिफाइंग क्लाइमेक्स दिखाया गया है जब ग्लॉसेस्टर को फिज़िकली पनिश किया जाता है, उसकी आंखें निकाल दी जाती हैं। ये फिज़िकल टॉर्चर है, इनर मॉरल ब्लाइंडनेस को भी यहाँ सिम्बलाइज़ करता है। अब उसकी एक्चुअल आंखें गई तो जो उसकी इनर ब्लाइंडनेस थी ग्लॉसेस्टर की वो ख़त्म हो गई। अब उसे समझ में आ गया कि एडमंड बुरा है और एडगर ही अच्छा है। बिट्रायल एंड ट्रेजरी, ग्लॉसेस्टर के अपने अपने जो उसका खुद का बेटा होता है वो कॉर्नवॉल और रीगन के लिए बिट्रे करता है। लियर की तरह ग्लॉसेस्टर भी अपने आसपास के लोगों की रियल इंटेंशन को समझने में फेल हो जाता है। ब्लाइंडनेस एंड इंसाइट। अब यहाँ पर ये देखो सीन बहुत ही लिटरल मेटाफोरिकल है ये, कि ब्लाइंडनेस को एक्सप्लोर करता है। मतलब ग्लॉसेस्टर फिजिकली ब्लाइंड हो जाता है, लेकिन आयरॉनिकली अब वो सच देख पा रहा है, क्योंकि अब उसे एडगर की लॉयल्टी और एडमंड के बिट्रायल उसे क्लियर दिख रहा है। ऑल्दो इसके पास आंखें नहीं, लेकिन अब उसे सब दिख रहा है। लॉस ऑफ अथॉरिटी के स्ट्रक्चर्स को और ज़्यादा कोलैप्स किया जाता है। मॉरल करप्शन और पर्सनल एम्बिशन डोमिनेट करते हैं, मॉरल करप्शन और पर्सनल एम्बिशंस। ठीक है, और मोटिव्स की बात करें तो आई इमेजरी, ग्लॉसेस्टर की आंखें निकालना एक डायरेक्ट सिंबल है कि कैसे पावर और पॉलिटिक्स में ट्रुथ को देखना मुश्किल हो जाता है। ये मोटिव थ्रू आउट प्ले रिकर करता है कि रियल साइट इज़ नॉट फिजिकल बट मोरल एंड इमोशनल अंडरस्टैंडिंग। बिट्रायल बाय चिल्ड्रन, ग्लॉसेस्टर का सन एडमंड का बिट्रायल इकोज करता है लियर के डॉटर्स के बिट्रायल को, या फिर उन्हें बिट्रायल मिला है अपने बच्चों से, अब मतलब ग्लॉसेस्टर को मिला है। मॉरल विजन एंड फिजिकल साइट, अब जैसे ही फिजिकल साइट गई उसकी ग्लॉसेस्टर की, उसका मॉरल विजन क्लियर हो गया। ठीक है, वॉयलेंस एज अ टूल ऑफ पावर, वॉयलेंस यहाँ एक नेसेसरी मेथड बन गया है कि ताकि डोमिनेंस एस्टेब्लिश किया जा सके। की कोड्स की बात करें, कॉर्नवॉल जब आंखें निकाल रहा होता है ना ग्लॉसेस्टर की, तो वो कहता है आउट वाइल्ड जेली वेयर इज़ दाई लस्टेड नाउ। तो कॉर्नवॉल वाइल्ड जेली यहाँ आइस को बोला गया है। तो कॉर्नवॉल ग्लॉसेस्टर की आंखें निकालते वक्त ये कहता है ये बात। वाइल्ड जेली मतलब ग्लॉसेस्टर की आइज़, जो कि शो करता है कॉर्नवॉल का सैडिस्टिक प्लेजर। सैडिस्टिक समझते हो ना, अब सैडिस्ट होता है जब कोई दूसरे के दुख पे जब हमें प्लेजर मिलता है, मतलब वो उसकी आइज़ निकाल रहा हो सैडिस्टिकली, वो कह रहा है आउट वाइल्ड जेली, मतलब उसको दूसरे के दुख में कितनी खुशी मिल रही है। ये लाइन बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल लॉस ऑफ विजन और डिग्निटी को सिम्बलाइज़ करता है। इस मोमेंट में ह्यूमन क्रूएलिटी अपने एक्सट्रीम फॉर्म में दिखाई गई है। ठीक है, अगली लाइन ग्लॉसेस्टर की, आई स्टम्बल्ड व्हेन आई सॉ। ये आंखें निकालने के बाद ग्लॉसेस्टर अपने पास्ट मिस्टेक्स को रिफ्लेक्ट करके कहता है कि मतलब मेरे से तो बड़ी गलतियाँ हुई हैं। मतलब जब उसके पास फिजिकल विजन था तब भी वो सच को नहीं देख पाया, जैसे एडमंड की बिट्रायल और एडगर की लॉयल्टी को वो नहीं देख पाया, है ना। आई स्टम्बल्ड व्हेन आई सॉ,
जब आंखें थी तो वो नहीं देख पाया। ट्रू इंसाइट फिजिकल साइट से नहीं, इमोशनल विजडम से आती है। ये प्ले का एक और कोर आइडिया है, ये मतलब कोर आइडिया बोलते हैं इसको, कि वो समझ गया ये बात कि जो ट्रू इंसाइट है वो फिजिकल साइट से नहीं, मतलब आँखों से जो हम लिटरली देखते हैं उससे नहीं, बल्कि इमोशनल विजडम से आता है। रीगन ये बात बोलती है, हैंग हिम इंस्टेंटली। रीगन जब क्या करता है, क्या करती है कि जब ये ग्लॉसेस्टर को पनिश कर रहे होते हैं ना, तब बोलती है कि इसको हैंग हिम इंस्टेंटली, इसको लटका दो। मतलब रीगन ग्लॉसेस्टर को पनिश करने की और भी ब्रूटल सजेशन देती है। मतलब ये कितनी क्रूअल है, मतलब क्रूअल तो बहुत छोटा शब्द है इसके लिए, बहुत ज़्यादा क्रूअल है। ये लाइन रीगन की क्रुएलिटी और मर्सीलेस एटीट्यूड को एक्सपोज करती है कि कितनी मर्सीलेस है ये। तो पॉलिटिकल पावर के लिए ह्यूमन लाइफ की कोई वैल्यू नहीं बची है, ये हमें इस वाले सीन से पता चलता है। 7C जो है, मतलब कंक्लूजन की बात करें हम अगर, तो सेवेंथ सीन जो है ब्रूटैलिटी का हॉरिफाइंग स्पेक्टिकल है। और जो एलिजाबेथन ऑडियंस थी ना उस ज़माने में जब ये लिखा गया, तो एलिजाबेथन एरा था, तो एलिजाबेथन ऑडियंस के लिए बहुत शॉकिंग था। इवन मॉडर्न ऑडियंस जो हम लोग इसके मॉडर्न ऑडियंस है, या मॉडर्न रीडर कह सकते हो हम मॉडर्न ऑडियंस हैं, मतलब मॉडर्न रीडर्स हैं, हमारे लिए भी बहुत डिस्टर्बिंग है। आप सोचिए किसी की आंखें निकाली जा रही हैं, कितना दिमाग घुमा देने वाली ये इंसिडेंट है ये। ग्लॉसेस्टर का ब्लाइंडिंग, मतलब ग्लॉसेस्टर का ब्लाइंड होना एक फिज़िकल साथ ही साथ एक सिंबॉलिकल एक्ट है। पहले वो ब्लाइंड था क्योंकि वो सच में नहीं देख पा रहा था, क्योंकि वो सच नहीं देख पा रहा था। पहले वो ब्लाइंड था क्योंकि वो सच नहीं देख पा रहा था, अब वो ब्लाइंड है इसलिए वो सच में नहीं देख पा रहा है, मतलब वो सच में नहीं देख पा रहा है इसलिए वो ब्लाइंड है। अब वो लिटरली ब्लाइंड होने के बाद डीपर ट्रुथ को लेकिन समझ रहा है, अब एक्चुअली में वो अंधा नहीं है। कॉर्नवॉल और रीगन का बिहेवियर बताता है कि पॉलिटिकल एम्बिशन जब अनचेक्ड होता है तो मोरालिटी कोलैप्स कर जाती है। यहाँ पर हमें सर्वेंट्स का भी इंटरवेंशन दिखता है, मतलब एक मामूली सर्वेंट जिसका नाम भी यहाँ पर नहीं हमें मेंशन किया गया है, वो कॉर्नवॉल को रोकने की कोशिश करता है। ये कितनी बड़ी बात है, मतलब ये बताता है कि लोग अभी भी ह्यूमैनिटी में बिलीव करते हैं, उसको अपनी लाइफ की, अपनी नौकरी की बिल्कुल चिंता नहीं है। उसको ये चिंता है कि अरे आंखें निकाल रहे हैं इंसान की, जीते जागते इंसान की आंखें निकाल रहे हैं, कितना पेन मिलेगा उसको। कॉर्नवॉल अपनी इंजरी से बल्कि मर भी जाएगा आगे चलकर। और ये एक मतलब कहते हैं ना कि कर्मा उसने बुरा किया और उसको वूंड लग गया, वूंड से वो तड़प तड़प के मर जाएगा। मतलब ब्रुटैलिटी का एंड सेल्फ डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, ये है एक्चुअल लाइफ में भी। अगर आज आप किसी साथ बुरा करते हैं तो आपके साथ भी उतना ही बुरा होगा। सो एक्ट 3 सीन 1 इज़ वन ऑफ द डार्केस्ट मोमेंट ऑफ किंग लियर। वॉयलेंस एंड मॉरल कोलैप्स दोनों पीक पर हैं। ब्लाइंडनेस का मेटाफर फुल सर्कल कंप्लीट कर रहा है यहाँ पर। जब इंसान सच नहीं देख सकता तो उसकी दुनिया ख़त्म होने लगती है। पॉलिटिकल बिट्रायल और फैमिलियल डिसलॉयल्टी ट्रेजेडी को डीप कर रही है और लियर और ग्लॉसेस्टर दोनों के आर्क्स को पैरेलल बना देते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट एक्ट 3. Act 3 is a turning point in King Lear. It combines So Act 3 is a turning point in King Lear. It combines physical, emotional and moral storms that dismantle characters' illusion and set the stage for tragic revelations. Lear's madness is not merely insanity, it's painful awakening. Gloucester's blinding, it's not just punishment, it is ironic enlightenment. Shakespeare uses nature, suffering and betrayal to deepen the tragedy, which shows that vision, truth and love often emerge through pain and destruction. So this is all about Act 3. We will discuss Act 4 in our next video. Till then, thank you and bye.